Hello everyone, I'm Dr. Nisha Bhardwaj and welcome to PEAT Simplified. Today we are going to continue our series on previous year questions and discuss NEET PG Pediatric questions from 2024. So let's start with our video. So let's start with our first question, which is given below is the growth curves for 3 children. Interpret these and decide which one indicates growth failure. तो यहाँ पे you have been given 3 different curves और इनको देख करके you have to interpret कि किसको growth failure है. तो अगर हम फर्स्ट ग्रोथ कर्व की बात करते हैं तो फर्स्ट कर्व के अंदर हमें दिखाई दे रहा है दैट इट लाइज वेल बिटवीन योर 0 to +2 स्टैंडर्ड डेविएशंस. तो अगर 0 to +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में द ग्रोथ कर्व इज लाइंग दैट मीन इट्स नॉर्मल फॉर एज एंड पॉपुलेशन. इसके अलावा ये अपवर्ड गोइंग ग्रोथ कर्व है और ये पैरेलल है टू द ऑलरेडी ड्रॉन जो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के कर्व्स हैं. दैट मीन्स दिस इज नॉर्मल. सिमिलरली अगर हम ग्रोथ 2 को जो ग्रोथ कर्व 2 है उसको देखते हैं तो वो ग्रोथ कर्व जो 1 है उसके नीचे है डेफिनेटली, बट इट इज़ ऑल्सो गोइंग अपवर्ड्स. दूसरी चीज़ ये हमारा 0 से लेके -2 स्टैंडर्ड डेविएशंस के बीच में लाई कर रहा है. ठीक है. और तीसरी चीज़ क्या है दैट इट इज़ पैरेलल टू योर ऑलरेडी जो हमारा 0 सेंटाइल जो ड्रॉ किया गया है यहाँ पे जो 0 स्टैंडर्ड डेविएशन उसके साथ में ये पैरेलल है. दैट मीन्स ये भी हमारा नॉर्मल है बिकॉज वी से कि +2 से लेकर के -2 स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में जो भी चीज़ लाई कर रही है दैट इज़ नॉर्मल फॉर योर पॉपुलेशन. तो दैट मीन्स जो हमारा 1 और 2 है बोथ ऑफ दीज आर नॉर्मल. बट अगर हम ग्रोथ कर्व 3 को देखते हैं यहाँ पर पहले इनिशियली यू सी की अपवर्ड गोइंग है बट यहाँ पर यू सी दैट इट इज़ क्रॉसिंग सेंटाइल्स या फिर हमारे जो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो मार्क किए गए हैं इन कर्व्स को ये क्रॉस कर रहा है एंड इट इज़ क्रॉसिंग 2 सेंटाइल्स और 2 ये स्टैंडर्ड डेविएशंस. दिस मीन्स कि ग्रोथ पहले नॉर्मल हो रही थी बट देयर इज सम इशू विद द ग्रोथ एंड नाउ द ग्रोथ हैज़ हैम्पर्ड. इसका मतलब क्या हुआ दैट द ग्रोथ कर्व 3 हैज़ ग्रोथ फेलियर. सो इसके अंदर जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट वुड बी डी, दैट इज ओनली 3. यू हैव ग्रोथ फेलियर हेयर. तो अगर हम ग्रोथ कर्व्स देखते हैं तो देर आर सम रेड फ्लैग साइंस विच यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड एक्ट क्विकली जो अभी हम देख. So let's learn what are these red flags you have to be careful about. So the first is height less than 3rd centile, or you can say when the height is less than -2 standard deviation then it's a red flag and you have to act quickly. Then you have height velocity less than 4 centimeter per year. So after infancy, anytime if the height velocity is less than 4 centimeter per year, this indicates that growth is not adequate and it's a red flag sign. Next is when the height or weight is crossing more than 2+ major centiles and that too downward. So you see crossing of 2 major centile lines in the downward direction. It's a red flag sign and this is the one which was shown in your question. Then you have predicted adult height which is more than 2 standard deviation below the MPH. तो कोई भी बच्चे के लिए when you calculate mid parental height and you predict the adult height based on the present trajectory and you see कि MPH से the predicted adult height is more than 2 standard deviation below, then it's a red flag sign and you need to act quickly. Then you have weight for height less than -3rd standard deviation and mid upper arm circumference less than 11.5 centimeters, which is your criteria for SAM. If you find this, you need to act fast and do nutritional rehabilitation for these children. Then you have a child who is short plus overweight. So this is not normal obesity. This is something which needs some workup. There might be some endocrine underlying cause. So you need to be fast in such cases. Then you have head circumference which is crossing centiles. If the head circumference is crossing centiles, whether in the upward or downward direction, it can indicate micro or macrocephaly and you need urgent neurology or neurosurgery input. So these are some of the red flags you need to be careful about while looking at growth chart in your daily life. So the next question is, a mother brought her 2-year-old child to the OPD with complaints of lack of weight gain, abdominal pain on eating and poor eating habits. The child was advised gluten-free diet, after which there was improvement noted in the general condition and weight gain. What is the probable diagnosis? So here you have been given a clinical scenario. यहाँ पर कुछ complaints दिए गए हैं और the treatment was also advised और उसके basis पे you have to identify what is the diagnosis. एक तो important is that यहाँ पे हमें 2-year-old child दिया गया है जिसको वेट गेन नहीं हो रहा है, अब्डोमिनल पेन हो रहा है खाने पर एंड यू एडवाइज ग्लूटेन फ्री डाइट. ग्लूटेन फ्री डाइट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट की वर्ड है बिकॉज ग्लूटेन फ्री डाइट यू एडवाइज इन अ पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन विच इज सीलियाक डिजीज. और ग्लूटेन फ्री डाइट एडवाइज करने के बाद यू नोटिस इम्प्रूवमेंट ऑल्सो. इसका मतलब दिस वॉज द राइट ट्रीटमेंट. इसका मतलब क्या है, डायग्नोसिस वुड बी सीलियाक डिजीज. तो सीलियाक डिजीज के अंदर हम ग्लूटेन फ्री डाइट दे रहे हैं और उससे यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट दिख रही है. So there are some things you need to know about celiac disease and celiac disease is a very important NEET PG question जो
once in 2 to 3 years is often repeated. So you have to be well versed about certain. So let's learn what celiac disease actually is. Celiac disease क्या होता है? It's a gluten sensitive enteropathy. इसका मतलब the gluten in your diet or in your food is going to cause enteropathy in genetically susceptible individuals. तो ग्लूटेन हमारी डाइट में आता कहाँ से है? ग्लूटेन हमारी डाइट में कॉमनली 4 चीज़ों से आता है, जिसमें आता है B विच स्टैंड्स फॉर बार्ले, ठीक है, R विच स्टैंड्स फॉर राई, O विच स्टैंड्स फॉर ओट्स एंड W विच स्टैंड्स फॉर व्हीट. तो इन 4 चीज़ों से हमारी डाइट में ग्लूटेन आता है. हेंस इफ़ यू कंज्यूम दीज 4 थिंग्स, if you are genetically susceptible, then you are going to develop celiac disease or enteropathy. इसका कॉमन जेनेटिक एसोसिएशन होता है विद 2 HLA. वन इज HLA-DQ2 एंड अदर इज HLA-DQ8. सो इन दोनों के साथ देर इज अ जेनेटिक एसोसिएशन, और इफ दीज आर प्रेजेंट देर आर हाई चांसेस दैट द चाइल्ड विल हैव सीलियाक डिजीज. कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स के साथ भी इसका एसोसिएशन होता है. सो इफ़ यू हैव वन ऑफ दीज, यू नीड टू स्क्रीन दीज चिल्ड्रन फॉर सीलियाक डिजीज. जैसे कि होता है डाउन सिंड्रोम, टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस और हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस. इन सब के अंदर यू हैव इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी ऑफ सीलियाक डिजीज, सो यू नीड टू एक्टिवली सर्च फॉर सीलियाक डिजीज इन सच कंडीशंस. तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? जब सीलियाक डिजीज होता है, यू आर नॉट गोइंग टू एब्जॉर्ब द कॉमन न्यूट्रिएंट्स इन योर फूड बिकॉज आपको एंट्रोपैथी है. आपके जो भी एब्जॉर्प्शन वाला एरिया है दैट इज डैमेज ड्यू टू एंट्रोपैथी, तो आप नहीं एब्जॉर्ब कर पाओगे, जिसकी वजह से एज सून एज यू स्टार्ट वीनिंग, दैट इज आफ्टर 6 months. आफ्टर 6 months यूजुअली ये प्रेजेंट करता है, क्योंकि आफ्टर 6 months यू इंट्रोड्यूस वीट इन द डाइट. तो इसके बाद यू डेवलप डायरिया, फेलियर टू थ्राइव, बिकॉज एब्जॉर्प्शन नहीं है तो न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे, तो दीज चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू ग्रो प्रॉपरली. दे हैव शॉर्ट स्टेचर, दे हैव आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया विच इज रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट. सीलियाक डिजीज कॉमनली आपका डिओडेनम को अफेक्ट करता है, ठीक है. तो अगर आपका डिओडेनम अफेक्ट होता है वेयर यू हैव मैक्सिमम आयरन एब्जॉर्प्शन, तो आयरन नहीं एब्जॉर्ब होगा एंड यू हैव आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया विच इज रिफ्रैक्टरी टू आयरन थेरेपी. इसके अलावा डायग्नोसिस के लिए यू हैव सम नॉन इन्वेजिव टेस्ट जो हम ब्लड में सीरोलॉजी से कर सकते हैं. तो बेस्ट स्क्रीनिंग एंटीबॉडी कौन सी होती है? यस, दैट इज anti-TTG IgA. TTG स्टैंड्स फॉर टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज. तो बेस्ट स्क्रीनिंग एंटीबॉडी anti-TTG IgA होता है, जो हम कॉमनली अपनी ओपीडीज में करते हैं. बट व्हाट इज द मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी? दैट इज anti-EMA एंटीबॉडी. EMA इट स्टैंड्स फॉर एंडोमाइसियल एंटीजन. तो anti-EMA इज द मोस्ट स्पेसिफिक एंड anti-TTG इज द मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन जो हम स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर कंफर्मेशन ऑफ celiac disease in India, it should be duodenal biopsy, that too from the D1 and D2 segment of your duodenum. यहाँ से हम बायोप्सी करते हैं. बायोप्सी को आप हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं एंड यू अप्लाई द मार्च क्राइटेरिया और क्लासिफिकेशन फॉर डायग्नोजिंग celiac disease. हिस्टोपैथ में what all findings do you see? You have villous atrophy, you have crypt hyperplasia and you have increased intraepithelial lymphocytes. तो अब अगर हम यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजिकल एक स्पेसिमेन देखते हैं, ये हमारा नॉर्मल सेक्शन है जिसके अंदर यू सी दीज आर द विलाए जो आपको बहुत ही टॉल दिखाई दे रहे हैं एंड दीज आर योर क्रिप्ट्स, ठीक है. एंड यू सी रेयरली फ्यू लिम्फोसाइट्स इन दी मिकोजा. लेकिन अगर आप सीलियाक डिजीज का बायोप्सी देखेंगे, यहाँ पर विलाए आर शॉर्ट, मतलब देयर इज विलस एट्रोफी एंड यू सी मोर ऑफ दीज क्रिप्ट्स हियर. सो दिस इज क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया एंड यू सी मोर ऑफ इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं. तो दिस इज व्हाट सीलियाक डिजीज लुक्स लाइक ऑन हिस्टोपैथोलॉजी. तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? Treatment is lifelong gluten-free diet. You cannot give gluten to such children because this is going to trigger enteropathy. So that these children are put on gluten-free diet lifelong. Gluten-free diet का मतलब क्या है? You have to avoid the bro. जो bro की हमने बात की उनको आप avoid करेंगे such that these children they can have a normal development. So let's move on to next. Let's look at another question. Here, what is represented by each of the following growth curves? तो यहाँ पर you have been given 4 growth curves labeled A, B, C and D, और इन different growth curves के लिए you have to identify कि ये किस organ की growth को show कर रहे हैं. तो अगर हम growth curve A को देखते हैं तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि जो maximum growth है वो 0 से 2 to 3 years के बीच में हो रही है. उसके बाद the growth is almost static. ये जो growth pattern होता है हमें कहाँ देखने को मिलता है? ब्रेन के लिए, क्योंकि हमने बात किया कि ब्रेन का जो मेजर हमारा ग्रोथ है वो इनिशियल 2 to 3 years ऑफ लाइफ में ही हो जाता है. सो ए हियर इज ब्रेन. देन यू हैव बी ग्रोथ कर्व जिसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि जो इसका पीक ग्रोथ है
वो हमें दिख रहा है अराउंड 7 to 8 ईयर्स के आसपास, और उसके बाद 7 to 8 से लेके 16 ईयर्स के बीच में इसका पीक ग्रोथ दिख रहा है, उसके बाद रिग्रेस। और ये जो हमारा ग्रोथ पैटर्न है दैट इज कंसिस्टेंट विथ टॉन्सिल्स, क्योंकि हमारे टॉन्सिल्स जो होते हैं वो एक्सपोजर के साथ इसी टाइम पर ग्रो करते हैं। देन यू हैव कर्व सी। कर्व सी के अंदर हम देखते हैं दैट सम बेसलाइन ग्रोथ तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है इनिशियल से ही, बट लेटर ऑन अराउंड 12 to 16 ईयर्स के बीच में व्हेन देयर इज पिवोटल स्पर्ट द ग्रोथ इज इंक्रीज्ड। सो सी इज योर सोमैटिक ग्रोथ। सोमैटिक ग्रोथ मतलब कि हमारा जो हाइट का ग्रोथ है या फिर हमारा जो वेट का इंक्रीज है वो सब हमारा सी ग्रोथ कर्व से रिप्रेजेंट हो रहा है। देन यू हैव डी। डी ग्रोथ कर्व में आप देखते हो कि सी से भी बहुत कम है, इसका मतलब ऑलमोस्ट नील ग्रोथ है इन द इनिशियल 14 ईयर्स ऑफ लाइफ। उसके बाद यू सी अ सडन स्पर्ट। ये क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर प्यूबर्टी आ रही है एंड यू सी ग्रोथ ड्यूरिंग प्यूबर्टी ओनली, एंड दैट इज शोन बाय योर गोनाड्स। तो ए इज फॉर ब्रेन, B is for tonsil, C is for somatic growth, and D is for your gonads or testis or ovary, you can say anything. So this, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर बनता है दैट वुड बी D. A is for brain, B is for tonsil, C is for somatic growth and D is for testis. ये आपके होते हैं स्कैमन्स ग्रोथ कर्व। स्कैमन्स ग्रोथ कर्व हैं और ये आप कॉमनली आपको दिखेंगे आपकी ओपी घड़ी टेक्स्ट बुक में। तो ये आपका स्ट्रेट अवे फ्रॉम द बुक है क्वेश्चन। Let's move on to our next question, which is an adolescent presented with fever, purpura on thigh, swelling of right knee and left ankle, and a diastolic murmur in the cardiac apical areas. He was seronegative for rheumatoid factor, which is the probable diagnosis. तो यहाँ पर you have been given a clinical STEM based question, जिसमें आपको कुछ क्लिनिकल फीचर्स और एग्जामिनेशन के फाइंडिंग्स दिए हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन दिया है और उससे आपको डायग्नोसिस पूछा गया है। तो क्या हमें इसमें मेन फीचर्स दिए गए हैं? एक तो है फीवर, देन यू हैव परप्यूरा, अलॉन्ग विद दिस यू हैव स्वेलिंग ऑफ द राइट नी एंड लेफ्ट एंकल, एंड यू हैव अ डायस्टोलिक मर्मर। तो यहाँ पे यू हैव फीवर प्लस यू हैव जॉइंट इन्वॉल्वमेंट प्लस यू हैव कार्डियक इन्वॉल्वमेंट। फीवर विद जॉइंट एंड कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, और आपको यहाँ पे दिया गया है कि रूमेटॉइड फैक्टर तो नेगेटिव ही है। तो सीधा सीधा यहाँ पे अगर हम इसमें से रूल आउट करने की भी कोशिश करें, सीरो नेगेटिव आर्थ्रोपैथी, बट इसमें कार्डियक इन्वॉल्वमेंट क्यों होगा, है ना? तो नहीं लग रहा है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस दे हैव गिवन कि रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव है, नहीं हो सकता। जुवेनाइल डर्मेटोमायोसाइटिस में मेनली यू हैव मसल्स इन मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट एंड यू कैन हैव सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स ऑल्सो विच इज़ कैल्सिनोसिस क्यूटिस। बट ये जो फीवर मर्मर का ये सारा जो प्रेजेंटेशन है क्लासिकली हमें एक्यूट रोमैटिक फीवर में देखने को मिलता है, सो दिस इज ऑल्सो लेस लाइकली। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर डायग्नोसिस वुड बी एक्यूट रोमैटिक फीवर। एक्यूट रोमैटिक फीवर का डायग्नोसिस बनाने के लिए यू यूज अ क्राइटेरिया विच इज़ द जोन्स क्राइटेरिया, जिसको हम जोन्स से ही रिमेंबर करते हैं। तो अभी देखते हैं कि वो जोन्स क्राइटेरिया क्या। सो एक्यूट रोमैटिक फीवर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसमें एक दो ऐसे पार्ट्स हैं जो बहुत ही कॉमनली आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो द फर्स्ट वन इज हाउ यू डायग्नोज एक्यूट रोमैटिक फीवर, दैट इज बाय जोन्स क्राइटेरिया एंड इट इज रिपीटेडली टेस्टेड इन योर एग्जाम्स। एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस ऑफ रूमैटिक हार्ट डिजीज, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्यूट रोमैटिक फीवर हमें पता है कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की मॉलिकुलर मिमिक्री के वजह से होता है। एक बार ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद यू हैव एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन और वो मॉलिकुलर मिमिक्री से हमारे नॉर्मल टिश्यूज को डैमेज करती हैं, उसकी वजह से यू गेट एक्यूट रोमैटिक फीवर। एक्यूट रोमैटिक फीवर का डायग्नोसिस करने के लिए यू यूज दी जोन्स क्राइटेरिया, जिसको हम जोन्स निमोनिक से ही याद कर सकते हैं, जिसके मेजर क्राइटेरियाज आप ऐसे याद करेंगे, माइनर क्राइटेरियाज अलग है। तो लो रिस्क और मॉडरेट या हाई रिस्क पॉपुलेशन के हिसाब से यू हैव डिफरेंट क्राइटेरियाज। बट जे से यू हैव जॉइंट्स, दैट इज आर्थराइटिस, ये जो हमने हार्ट बनाया है इसका मतलब कार्डाइटिस। एन का मतलब नोड्यूल्स, दैट इज सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। ई का मतलब यू हैव एरिथेमा मार्जिनेटम एंड एस का मतलब यू हैव सिंडेनहैम्स कोरिया। तो ये हमारे 5 क्राइटेरियाज होते हैं, मेजर क्राइटेरियाज फॉर एक्यूट रोमैटिक फीवर का डायग्नोसिस। अब लो रिस्क के अंदर जो हमारे क्राइटेरियाज हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है, मॉडरेट या हाई रिस्क जो है उसके अंदर हमारे जो क्राइटेरियाज है वो लेस स्ट्रिक्ट है। तो कार्डाइटिस इट कैन बी क्लिनिकल और सब क्लिनिकल कार्डाइटिस। सब क्लिनिकल कार्डाइटिस वो है जिसमें आपको ऑस्कल्टेशन पे कुछ नहीं मिल रहा है, बट ऑन इकोकार्डियोग्राफी यू आर फाइंडिंग समथिंग विच इज सजेस्टिव ऑफ कार्डाइटिस, तो वो सब क्लिनिकल है। आर्थराइटिस में अगर हम बात करते हैं तो लो रिस्क में यू हैव जस्ट पॉलीआर्थराइटिस, बट मॉडरेट टू हाई रिस्क में क्योंकि वहाँ रिस्क ज़्यादा है तो आपके क्राइटेरियाज लेस स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे मोनोआर्थराइटिस भी है, वहाँ पे पॉलीआर्थराइटिस भी है एंड इवन पॉलीआर्थरेल्जिया भी है। इसके अलावा कोरिया विच इज सिंडेनहैम्स कोरिया, एरिथेमा मार्जिनेटम एंड सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, ये सारे के सारे आपके दोनों ही एरियाज में सेम क्राइटेरियाज है। देन यू हैव माइनर क्राइटेरियाज जिसमें यू हैव कार्डाइटिस के लिए प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल ऑन ईसीजी जो दोनों में सेम है,
मैनी ऑफ आर्थरेल्जिया। तो हमने बात किया था कि लो रिस्क या मॉडरेट, जो लो रिस्क है उसमें पॉली आर्थराइटिस इज द मेजर क्राइटेरिया, और मॉडरेट टू हाई रिस्क में इवन पॉली आर्थरेल्जिया हैज़ बीन इंक्लूडेड। यहाँ पे पॉली आर्थरेल्जिया इज अ माइनर क्राइटेरिया, जबकि मोनो आर्थरेल्जिया अगर है तो वो लो रिस्क टू मॉडरेट, सॉरी हाई रिस्क टू मॉडरेट रिस्क में भी एक माइनर क्राइटेरिया आता है। फीवर का कट ऑफ भी दोनों में अलग है, इसमें 38.5 है और लो रिस्क हाई रिस्क के अंदर 38 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा मार्कर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के भी कट ऑफ्स डिफरेंट है। यहाँ पे ESR मोर देन 60 है, यहाँ पे ESR मोर देन 30 है, यहाँ पे CRP मोर देन 3 और यहाँ पे CRP मोर देन 3 है। सो ये होता है हमारा जोन्स क्राइटेरिया, जिसमें मेजर और माइनर क्राइटेरियाज हैं। अब इसके साथ में यू नीड टू हैव द एविडेंस ऑफ recent streptococcal infection in the past 45 days. Either you have raised ASO titers more than 200, more than equal to 200, या फिर you have a throat culture which is positive. तो अगर throat culture positive आ गया मतलब कि streptococcal infection था, या फिर कोई तुम्हारा rapid antigen test जो है वो positive आ गया है, तो ये सब जो है recent streptococcal infection को दिखाते हैं। सो एक्यूट ट्रॉमेटिक फीवर का डायग्नोसिस बनाने के लिए यू शुड हैव दिस recent streptococcal infection का एविडेंस, along with that you have 2 major criterias, और यू कैन हैव 1 मेजर क्राइटेरिया प्लस 2 माइनर क्राइटेरियाज। तो ये तो हमारे फर्स्ट एपिसोड में होता है, लेकिन अगर आपका रिपीट एपिसोड हो रहा है एक्यूट ट्रॉमेटिक फीवर का, तब आप 3 माइनर क्राइटेरिया से भी एक एक्यूट ट्रॉमेटिक फीवर का डायग्नोसिस बना सकते हो। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। जब भी आपके पास एक्यूट ट्रॉमेटिक फीवर के साथ कोई भी आता है तो आपको उस एक्यूट ट्रॉमेटिक फीवर को ट्रीट करने के लिए यू नीड टू गिव सम एंटीबायोटिक्स। यू कैन गिव इधर पेनिसिलिन और अरिथ्रोमाइसिन, और यू कैन गिव अजिथ्रोमाइसिन। इसके साथ में आपको एस्पिरिन देना है। इनिशियली आप हाई डोज में देते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज में देते हो, विच इज़ 50 to 70 mg पर kg पर डे। उसके बाद लेटर ऑन आप इसको एंटी प्लेटलेट डोज में कन्वर्ट कर देते हो, विच इज़ 3 to 5 mg पर kg पर डे। और अगर किसी पेशेंट को सीवियर कार्डाइटिस है तो यू विल ऐड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एज वेल। तो ये तो हो गया डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। अब आपको प्रोफाइलेक्सिस प्रोवाइड करना है। हाउ आर यू गोइंग टू प्रोवाइड दिस प्रोफाइलेक्सिस? प्रोफाइलेक्सिस जो होता है 2 तरीके का है यहाँ पे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या है कि आप एक्यूट ट्रॉमेटिक फीवर होने नहीं दे रहे हो, उसके लिए यू ट्रीट एवरी स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन विद अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स। लेकिन सेकेंडरी इज कि आपका एक्यूट ट्रॉमेटिक फीवर हो गया बट आप रूमेटिक हार्ट डिजीज नहीं होने दे रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए यू गिव इंजेक्शन बेंजाथाइन पेनिसिलिन। अब उसकी डोज डिपेंड करती है वेट पे। अगर 27 kg के इक्वल है या उससे कम है तो आप दोगे 6 lakhs इंटरनेशनल यूनिट, और अगर 27 kg से ज़्यादा है तो आप दोगे 1.2 million और योर 12 lakh इंटरनेशनल यूनिट्स, जस्ट द डबल ऑफ प्रीवियस वन। अब ये तो हो गया क्या देना है और कितना डोज में देना है, बट यू नीड टू नो कि कितनी ड्यूरेशन के लिए भी देना है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑफन टेस्टेड। तो अगर रूमेटिक फीवर है सिर्फ और कोई कार्डाइटिस का एविडेंस नहीं है तो आप सिर्फ 5 years के लिए दोगे और 21 years ऑफ एज दोगे, विच एवर इज लॉन्गर, ठीक है। अगर रूमेटिक फीवर है और उसको कार्डाइटिस भी है बट अभी कोई रेजिडुअल वैल्वुलर डिजीज नहीं है, मतलब जब रूमेटिक फीवर हुआ था तब कार्डाइटिस के साथ था बट अभी कोई रेजिडुअल वैल्वुलर डिजीज नहीं है, तो आप 10 years के लिए दोगे और टिल 21 years ऑफ एज, विच एवर इज लॉन्गर। और अगर उसको रूमेटिक फीवर हो गया है, साथ में वैल्वुलर डिजीज परसिस्टेंट है जो आपको क्लिनिकली या इको किसी पे भी दिखाई दे रहा है, तो यू हैव टू गिव टिल 10 years और 40 years ऑफ एज। तो 10 years आफ्टर द लास्ट अटैक और 40 years ऑफ एज तक, विच एवर इज लॉन्गर। कई बार ऐसे केसेस में आपको लाइफ लॉन्ग प्रोफाइलेक्सिस भी देना पड़ सकता है। तो रूमेटिक फीवर है बट कार्डाइटिस नहीं है तो आप 5 साल तक देंगे लास्ट एपिसोड के, या 21 years ऑफ एज तक देंगे। रूमेटिक फीवर है, कार्डाइटिस था बट अभी रेजिडुअल वैल्वुलर डिजीज नहीं है तो 10 years और 21 years, और अगर वैल्वुलर डिजीज है तो 10 years एंड 40 years ऑफ एज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू लर्न दिस, ठीक है। अब so next question is, a neonate has bilateral chorioretinitis with intraparenchymal diffuse calcifications in the brain. The baby also has hydrocephalus. What is the likely causative organism here? तो यहाँ पर हमारे पास कुछ neonatal infections की बात की जा रही है और most likely these are your congenital infections जो हम याद करते हैं निमोनिक टॉर्च से। तो यहाँ पे टॉर्च इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ क्लूज दिए हैं और उससे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टॉर्च इन्फेक्शन है। तो इसमें बच्चे को है बायलैटरल कोरियोरेटिनाइटिस, इसको है डिफ्यूज कैल्सिफिकेशंस इन द ब्रेन एंड दे आर इंट्रापैरेन्काइमल। सो ये हमारा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग कीवर्ड है, बिकॉज इंट्रापैरेन्काइमल कैल्सिफिकेशंस आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें से हमारा टॉक्सोप्लाज्मोसिस आंसर होगा। जो ट्रिपैनोसोमा या टीनिया सोलियम है ये नियोनेट के अंदर ये मैनिफेस्टेशंस नहीं करते हैं। कोरियोरेटिनाइटिस और इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशंस आपको टॉक्सोप्लाज्मा में भी मिलेगी और आपको सीएमवी में भी मिलेगी, बट आपको याद रखना है दैट सीएमवी यानी साइटोमेगालो वायरस जिसमें वी आता है उसकी जो कैल्सिफिकेशंस होती हैं दे आर पेरीवेंट्रिकुलर, ठीक है।
और जो हमारी टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है इसकी जो हमारी कैल्सिफिकेशंस होती हैं दे आर इंट्रा पैरेन्काइमल। तो इससे आप इजीली याद कर सकते हो कि किस तरीके के कंजेनिटल इन्फेक्शन में कौन सी कैल्सिफिकेशंस है, एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन। तो हमारे जो कंजेनिटल इन्फेक्शंस है यानी जो टॉर्च इन्फेक्शंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिपीट क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर 2 years के अंदर एक रिपीट हमें जरूर देखने को मिलता है। तो क्या टॉर्च इन्फेक्शंस होते हैं, उनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है वो अभी हम लेट्स लर्न। टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या पता होना चाहिए। टी से टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, ओ से अदर इन्फेक्शंस लाइक कंजेनिटल सिफिलिस, जीका वायरस या फिर कंजेनिटल पार्वोवायरस B19 होता है, आर से रुबेला होता है, सी से CMV और एच से हर्पीज जोस्टर होता है। तो टॉक्सोप्लाज्मा के बारे में व्हाट यू नीड टू नो इज कि एक ट्राइड होता है दैट इज हाइड्रोकेफेलस, कोरियोरेटिनाइटिस एंड इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशंस। ये तीनों कॉमनली हमें मिलते हैं। इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशंस आर इंट्रा पैरेन्काइमल। डायग्नोसिस करने के लिए यू गेट IgM और IgA ELISA डन और यू कैन गेट अ PCR इन द CSF ऑल्सो कैन बी डन। ट्रीटमेंट के लिए हमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि एक तो हमें एंटीनेटल ट्रांसमिशन कम करना है और अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसे हमें कैसे ट्रीट करना है। तो एंटीनेटल ट्रांसमिशन कम करने के लिए यू हैव स्पाइरामाइसिन जो हम एंटीनेटली मदर को दे सकते हैं, और दूसरी चीज ट्रीटमेंट के लिए यू गिव पायरामिथामीन विद सल्फाडायाजीन फॉर एटलीस्ट 1 year, और उसके साथ क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी वी आर गिविंग पायरामिथामीन एंड सल्फाडायाजीन का कॉम्बिनेशन, तो हम फॉलिनिक एसिड भी सप्लीमेंट करेंगे। तो ये तो होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। देन यू हैव अदर इन्फेक्शन जिसमें हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है कंजेनिटल सिफिलिस। सिफिलिस में एक कीवर्ड जो हमें हमेशा याद रखना है दैट इज रिकरेंट अबॉर्शन। दिस इज अ क्लासिकल फॉर कंजेनिटल syphilis. अब इसमें you can get some early signs and some late signs whenever the child has congenital syphilis. Early signs में you can have hepatosplenomegaly, you can have jaundice, you can have lymphadenopathy. इसके अलावा important is you have painful osteochondritis. ये जो painful osteochondritis होता है इतना painful होता है that जो बच्चा होगा वो अपने limbs ही move नहीं करेगा and you are thinking that the child has paralysis. तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है pseudo paralysis of Parrot because this is not true paralysis. This paralysis or this lack of movement is due to painful osteochondritis. So this is pseudo paralysis of Parrot. इसके अलावा यू हैव पेम्फिगस सिफिलिटिकस जिसमें यू हैव वेसिकुलर लीजन्स ऑन द स्किन, उसको हम बोलते हैं पेम्फिगस सिफिलिटिकस। देयर आर सम लेट साइंस ऑल्सो जैसे कि ओलंपियन ब्राउ जिसका मतलब होता है देयर इज अ प्रोमिनेंट एंड ब्रॉड फोरहेड। सैडल नोज होता है, इसमें बोनी डिफॉर्मिटीज की वजह से यू हैव अ नोज की डिफॉर्मिटी विच इज सैडल नोज। हचिनसन ट्राइड मिलता है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लासिकल फॉर कंजेनिटल सिफिलिस। इसके अंदर यू हैव 3 थिंग्स। सबसे पहले यू हैव इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस, तो इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस हो सकता है इसके अंदर। इसके अलावा यू हैव SNHL विच इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसके साथ यू हैव हचिनसन्स टीथ। तो जो हचिनसन टीथ होते हैं ये होते हैं पेग लाइक टीथ, जो फ्रंट इंसाइजर्स होते हैं ऊपर वाले ये दे आर पेग लाइक, सो दिस इज हचिनसन्स ट्राइड। इसके अलावा यू हैव सेबरशिन विच इज अ डिफॉर्मिटी ऑफ द टिबिया एंड यू हैव क्लटन जॉइंट्स विच इज नथिंग बट बायलैटरल नी इफ्यूजन। तो ये होता है हमारा कंजेनिटल सिफिलिस में क्या क्या हमें फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा अदर में यू हैव जीका वायरस ऑल्सो। तो जो जीका वायरस होता है इसके बारे में 1 थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि इसमें जो कैल्सिफिकेशंस होती हैं इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशंस वो हमें मिलती हैं ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के जंक्शन पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमें बाकी और इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन से इसको डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर रहा है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में होती है इंट्रापैरेन्काइमल, जीका वायरस में होती है ग्रे व्हाइट मैटर जंक्शन पे। देन यू हैव रुबेला, आर फॉर रुबेला। रुबेला के अंदर यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइड जिसे हम कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम में याद करते हैं C और D से। CCD से हमें याद रखना है C इज फॉर कैटरैक्ट, इसमें होता है कैटरैक्ट। C इज फॉर कार्डियक या फिर हार्ट डिजीज, कंजेनिटल हार्ट डिजीज जो मोस्ट कॉमनली इनमें PDA होता है। इसके अलावा D इज फॉर डेफनेस, डेफनेस होती है इसके अंदर सेंसरी न्यूरल, सो दिस इज SNHL। ठीक है, तो यू हैव दिस ट्राइड SNHL, कैटरैक्ट एंड हार्ट डिफेक्ट्स। इसके अलावा देर आर सम अदर फीचर्स ऑल्सो विच इज सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी। इसके अलावा यू हैव ब्लूबेरी मफिन, तो ये हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर। डायग्नोसिस करने के लिए यू गेट IgM फॉर रुबेला डन, बोथ मदर और बच्चों बेबी में हम कर सकते हैं। मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट इज देयर इज नो एज सच ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम। मैनेजमेंट करने के लिए यू जस्ट हैव टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन इन मदर, दैट इज यू हैव टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इम्यूनाइजेशन टू द मदर। सो दिस इज द फर्स्ट 3 ऑफ द टॉर्च इन्फेक्शंस। लेट्स लुक एट अदर इन्फेक्शंस टू। C से हमारा आता है CMV।
CMV इज द मोस्ट कॉमन टॉर्च इन्फेक्शन, जो मोस्ट कॉमन कंजेनिटल इन्फेक्शन है वो है CMV। इसका भी यू हैव अ ट्राइड। इसके अंदर इंपॉर्टेंट इज यू हैव माइक्रोकेफेली, जहाँ पे हमने हाइड्रोकेफेलस पढ़ा था, बिकॉज ऑफ हाइड्रोकेफेलस दे हैव मैक्रोकेफेली, यहाँ पे यू हैव माइक्रोकेफेली, यू हैव कोरियोरेटिनाइटिस एंड यू हैव पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशंस हियर। इसके अलावा इसमें भी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मिल सकता है। इसमें भी यू हैव ब्लूबेरी मल्फन लीजन्स ऑन द स्किन, जो हमारी डर्मल हिमाटोपोइसिस को दिखाती है। इसके अलावा डायग्नोसिस करने के लिए यू गेट IgM, you can get IgM for CMV done, but PCR for CMV is far better। और PCR करने के लिए you have 3 samples, urine, blood और saliva। इसमें से भी the best sample to get PCR done is urine। तो best investigation out of all these would be urine का PCR। इसके अलावा blood का PCR और saliva का PCR भी you can do, which is better than your IgM CMV। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? यू हैव अ ट्रीटमेंट फॉर दिस विच इज गैनसाइक्लोविर। गैनसाइक्लोविर आप देंगे IV फॉर 6 वीक, विच इज फॉलोड बाय ओरल फॉर 6 मंथ्स। तो दिस इज CMV। देन यू हैव H इज फॉर हर्पीज जोस्टर। हर्पीज जोस्टर यानी आपका कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम। अब इसके अंदर क्या होता है, यू हैव ऐसे याद कर सकते हो कि कुछ कुछ स्कारिंग से रिलेटेड है कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम में। तो स्कारिंग है तो सिकेट्रेशियल, इसमें स्किन लीजन्स होते हैं। अब सिकेट्रिशियल स्किन लीजन्स होने की वजह से यू हैव लिम्ब हाइपोप्लेजिया एसोसिएटेड विद दिस। अब अगर आपकी स्कारिंग होगी, आप मानो कि अगर यू हैव स्कारिंग इन द ब्रेन टिश्यू, यू विल गेट माइक्रोकेफेली एंड सेरिब्रल एट्रोफी। तो स्कारिंग से आप कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम के सारे फीचर्स याद कर सकते हो, दैट दे हैव सिकेट्रिशियल स्किन लीजन्स, दे हैव लिम्ब हाइपोप्लेजिया, दे हैव सेरिब्रल एट्रोफी एंड दे हैव माइक्रोकेफेली एज वेल। कॉमनली कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम से ज्यादा आपको पेरिनेटल वेरिसेला का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। पेरिनेटल वेरिसेला क्या होता है कि दिस इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर, रैदर आफ्टर बर्थ। मतलब अगर मदर को बिफोर डिलीवरी 5 डेज या फिर आफ्टर डिलीवरी 2 डेज के अंदर अंदर वेरिसेला होता है, तो दिस वेरिसेला कैन बी ट्रांसमिटेड टू द नियोनेट। उसको हम बोलते हैं पेरीनेटल वेरिसेला। बट इफ द वेरिसेला इज ट्रांसमिटेड एंटीनेटली, दैट इज कंजेनिटल वेरिसेला सिंड्रोम। तो हमने जितने भी टॉर्च इन्फेक्शंस पढ़े, इसमें से हमने पढ़ा कि लास्ट में जो C और H है, दैट इज योर CMV एंड योर हर्पीज जोस्टर। इसमें यू गेट माइक्रोकेफेली, बाकी सब में यू हैव ईदर हाइड्रोकेफेलस और यू हैव मैक्रोकेफेली। तो ये याद करना बहुत जरूरी है। टॉर्च इन्फेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। इसके बाद so let's see the next question. A 4-year-old child had petechiae and splenomegaly on examination. Lab investigation showed that HB is 7, WBC count is 50,000 and platelet count is 60,000. Acute leukemia was suspected. Treatment of this condition should have a regimen containing which of the following? तो यहाँ पे you have been given कि यहाँ पे acute leukemia का diagnosis बनाया गया। acute leukemia इन्होंने सोचा because the child has petechiae, the child has splenomegaly, and there is anemia and thrombocytopenia along with leukocytosis। तो ये सब देख के they have suspected कि बच्चे को acute leukemia है। इसके बाद they have directly asked कि इसके ट्रीटमेंट में क्या क्या होना चाहिए। अभी हम आगे देखते हैं कि कॉमनली विच ऑल ड्रग्स यू यूज इन दी ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट ल्यूकीमिया, बट फॉर टाइम बीइंग द आंसर वुड बी प्रेडनिसोलोन विद विंक्रेस्टीन। तो अभी हम देखते हैं कि हम कैसे अक्यूट ल्यूकीमिया को हम वी विल सी जस्ट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, नॉट इन डीप, है ना। नाउ लेट्स लर्न कि क्या क्या कॉमन ड्रग्स हम अक्यूट ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अब अक्यूट ल्यूकीमिया जैसे हमें पता है, इट कैन ईदर बी ALL और इट कैन बी AML ऑल्सो, है ना। तो ALL और AML में से कॉमनली हमारा जो एपिडेमियोलॉजिकल बेसिस है उसके अकॉर्डिंग ALL इज फार कॉमन इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू AML। तो अभी हम मान के चलते हैं यहाँ पे दैट दे आर टॉकिंग अबाउट ALL का ट्रीटमेंट। तो अगर हम ट्रीटमेंट ऑफ ALL की बात करते हैं, दैट इट इज़ डन इन वेरियस फेजेस लाइक इंडक्शन, कंसोलिडेशन, इंटरिम मेंटेनेंस, डिलेड इंटेंसिफिकेशन और मेंटेनेंस फेज। तो डिफरेंट फेजेस में यू हैव डिफरेंट ट्रीटमेंट, बट अगर हम ब्रॉडली बात करते हैं इंडक्शन की, तो व्हाट ऑल ड्रग्स आर यूज्ड इन इंडक्शन? स्टीरॉइड्स, vincristine, methotrexate and asparaginase. These drugs can be used in induction और other phases में भी इन्हीं drugs का कुछ कुछ combination like intrathecal और oral methotrexate, 6-MP या doxorubicin, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं for treatment of ALL. So अगर अभी हम question पे जाते हैं again, तो हमारे question पे हमें देख के पता चल रहा है that they are asking about ALL का treatment. They have given steroids and vincristine, which would be the correct answer here. Then let's move on. Let's look at the next question. An infant presents with respiratory distress. He has a previous history of recurrent respiratory tract infections. What is the diagnosis? You have been given the
options as CDH, pyoneumothorax, congenital pulmonary adenomatoid malformation and lung abscess. अगर आप यहाँ पे एक्सरे देखोगे, यहाँ पे you would see कि there is something cystic और hyperlucent यहाँ पे दिख रहा है आपको. इसके अलावा you have a intact diaphragm here, है ना, diaphragm भी intact है और यहाँ पे कुछ cystic सा लग रहा है और CT में वो clearly पता चल रहा है that there is something cystic here, है ना. अगर आप CDH की बात करते हो तो आपको लंग फील्ड के अंदर बावल लूप्स दिखते हैं जो आपको एयर जैसे दिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है, बट इन दी एक्सरे वी आर सीइंग कि क्लियरली यहाँ पे डायफ्राम हमें इंटैक्ट दिख रहा है, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट CDH. इसके बाद अगला ऑप्शन इज पायोन्यूमोथोरैक्स. पायोन्यूमोथोरैक्स होगा तो यू वुड सी कि न्यूमोथोरैक्स की वजह से यू वुड सी कि एक एयर फ्लूइड लेवल होगा अगर पायोन्यूमोथोरैक्स होगा, और यहाँ पे CT में भी हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, सो डेफिनेटली दिस इज नॉट पायोन्यूमोथोरैक्स. CPAM, it is CPAM because यहाँ पर हमें cystic malformation दिख रहा है of the lung and you have an intact diaphragm here. This is definitely cystic congenital pulmonary adenomatoid malformation और CPAM. अगर आप लंग एब्सेस की बात करते हो, यूजुअली यू सी अ कैविटी इन लंग एब्सेस, और अगर उसके अंदर गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है तो यू विल सी अ एयर फ्लूइड लेवल ऑल्सो. तो लंग एब्सेस भी ऐसा नहीं दिखेगा ऑन CT और ऑन एक्सरे, तो दिस इज डेफिनेटली नॉट लंग एब्सेस. तो ये जो हमारे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन नियोनेट के डिफरेंट कॉजेज होते हैं, जैसे CDH या कंजेनिटल पल्मोनरी CPAM या फिर कंजेनिटल लोबर एम्फाइसीमा, ये एक रिपीट क्वेश्चन है. हमने पिछली वीडियो में भी बात किया है 2025 वाली में, दैट दिस इज एन ऑफनली रिपीटेड क्वेश्चन. तो ये डिफरेंस आपको आना बहुत जरूरी है. तो अगर आप CDH की बात करते हो, CDH इज कंजेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया. इसका मतलब क्या है, योर डायफ्राम इज नॉट इंटैक्ट, उसकी वजह से योर एब्डोमिनल कंटेंट्स आर हर्निएटिंग इनटू योर लंग और थोरैसिक कैविटी, यानी कि फॉर शॉर्ट गट इज इन द चेस्ट. तो अगर गट चेस्ट में जाएगी और डायफ्राम इंटैक्ट नहीं होगा तो आपको डायफ्राम भी इंटैक्ट नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ नहीं दिख रहा है, और ऑल योर बावल लूप्स वुड बी इन द चेस्ट. सो दिस इज CDH. अगर आप CPAM की बात करते हो, जैसे कंजेनिटल पल्मोनरी एडेनोमेटॉइड मैल्फॉर्मेशन, इसके अंदर यू वुड सी मल्टीपल सिस्ट्स इन द लंग, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बहुत सारी सिस्ट है, बट इंपॉर्टेंट इज दैट यहाँ पे योर डायफ्राम वुड बी इंटैक्ट, अनलाइक CDH जहां पर आपको सिस्टिक जैसा दिख सकता है बट डायफ्राम वुड नॉट बी इंटैक्ट. ठीक है. अगला आता है कंजेनिटल निमोनिया. कंजेनिटल निमोनिया में क्या होगा, जैसे बाकी निमोनियाज में यू गेट टू सी कि इन्फिल्ट्रेट्स मिल सकते हैं या फिर लोबार निमोनिया है तो आपको कंसोलिडेशन मिल सकती है, वही यहाँ पर दिखेगा जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है. इसके बाद अनदर टर्म इज कंजेनिटल लोबार एम्फाइसीमा. इसका मतलब क्या है, पर्टिकुलर लोब ऑफ द लंग इज एम्फाइसीमेटस और वो ज्यादा ही एयर फिल्ड है, तो एक लोब एक्सेसिवली ल्यूसेंट आपको एक्सरे पे दिखाई देगा, जैसे यहाँ दिख रहा है. यहाँ पे भी आपका डायफ्राम वुड बी इंटैक्ट क्योंकि इसमें सिर्फ लंग के अंदर देयर इज हाइपरल्यूसेंसी और एम्फाइसीमेटस चेंजेस ऑफ अ पर्टिकुलर लोब ऑफ लंग. तो अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है बेस्ड ऑन योर हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड एक्सरे, तो हम कैसे करेंगे. अगर आप CDH की बात करते हो, जैसे हमने पढ़ा कि टिपिकली ये प्रेजेंट करते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सिवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एट बर्थ के साथ. ऑन एग्जामिनेशन अगर आप देखोगे, क्योंकि एब्डोमिनल कंटेंट्स आपके थोरैसिक कैविटी में चले गए हैं तो आपको स्किफॉइड एब्डोमेन दिखाई देगा. क्लासिक चेस्ट एक्सरे की जो हमारी अपीयरेंस होती है उसमें क्या होगा, मल्टीपल बावल लूप्स, क्योंकि वो आपके लंग वाले मतलब थोरैसिक कैविटी में हर्निएट कर गए तो मल्टीपल बावल लूप्स जो हैं आपको, या एयर फ्लूइड लेवल्स आपको एक साइड के हेवी थोरैक्स में मिलेगा. डायफ्राम की आउटलाइन जो है वो एब्सेंट होगी या फिर इंडिस्टिंक्ट होगी, और आपकी एब्डोमिनल बावल गैस दिखेगी ही नहीं क्योंकि सारे एब्डोमिनल कंटेंट्स तो आपके लंग वाली मतलब थोरैसिक कैविटी में चले गए हैं. अगर आप कंजेनिटल लोबार एम्फाइसीमा की बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है एंड यूजुअली ये फर्स्ट डे से मंथ्स यानी कि लेटर ऑन इन द लाइफ इन्फेंसी में प्रेजेंट करता है. CDH अगर सीवियर, यूजुअली दे प्रेजेंट इन द फर्स्ट 24 to 48 आवर्स ऑफ लाइफ. जो हमारा CLE होता है, इसके अंदर एब्डोमेन ऑब्वियसली नॉर्मल होगा, और इसके अंदर क्योंकि एक पर्टिकुलर लोब ऑफ लंग इज ही ओवर एक्सपैंडेड है तो एक यूनिफॉर्म हाइपरल्यूसेंट ओवर एक्सपैंडेड लोब दिखेगा आपको लंग का. डायफ्राम वुड बी इंटैक्ट और एब्डोमिनल बावल गैस नहीं दिखेगी, वो मतलब नॉर्मल दिखेगी, सॉरी. इसके अलावा अगर आप CPAM की बात करते हो, दैट इज कंजेनिटल पल्मोनरी एयरवे मालफॉर्मेशन, तो इसके अंदर या फिर एडेनोमेटॉइड मालफॉर्मेशन जो पहले बोला जाता था इसको, इसके अंदर अगर लार्ज लीजन्स होते हैं तो ये अर्ली प्रेजेंट करेंगे, और अगर स्मॉलर सिस्टिक लीजन्स होंगे दे वुड प्रेजेंट विद रिकरेंट इन्फेक्शंस, जैसा कि हमारे इस केस में दिखाई दिया था. एब्डोमेन वुड बी नॉर्मल बिकॉज लंग का पैथोलॉजी है. मल्टीपल सिस्टिक एयर स्पेसेस आपको दिखाई देंगे क्योंकि इसके अंदर हो ही रहा है कि सिस्टिक मालफॉर्मेशन हो गया आपका एयरवे का, बट डायफ्राम वुड बी इंटैक्ट हियर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डिफरेंस जो होता है आपसे हर बार ऑलमोस्ट एवरी टाइम इन द नीट PG दिस हैज बीन आस्क्ड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी. सो दिस इज वेरी स्कोरिंग, तो ये बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. So let's look at the next question. A girl presents with following deformity. Her calcium levels were normal, phosphate was low, PTH was normal, ALP was raised and LDH was normal. What is the diagnosis? तो यहाँ पे जो हमें deformity दी गई है that is your windswept deformity.
कॉमनली रिकेट्स में हमें विंडस्वेप्ट डिफॉर्मिटी भी मिल सकती है. यू कैन गेट वैल्गस डिफॉर्मिटी ऑल्सो, जिसमें यू हैव नॉक नीज, और यू कैन हैव वैरस डिफॉर्मिटी ऑल्सो लाइक दिस. तो वैल्गस, वैरस, विंडस्वेप्ट कोई भी डिफॉर्मिटी है कॉमनली हमें रिकेट्स में मिलती है. अब रिकेट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, न्यूट्रिशनल रिकेट्स, VDDR, हाइपोफॉस्फेटेमिक. तो इसने यही पूछा है कि व्हाट इज एक्जैक्टली द डायग्नोसिस इन दिस केस, जिसमें आपको डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस दी हुई है. अगर आप न्यूट्रिशनल रिकेट्स की बात करते हो, न्यूट्रिशनल रिकेट्स में यू नो दैट देयर इज हाइपोकैल्सीमिया, देयर इज हाइपोफॉस्फेटीमिया, देयर द PTH जो है इट वुड बी रेज्ड. ठीक है, तो ये तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है. तो डेफिनेटली PTH न्यूट्रिशनल रिकेट्स इज नॉट द आंसर हियर. हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स पे हम वापस आते हैं. VDDR1 और VDDR2 जो होता है, दे बिहेव ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर न्यूट्रिशनल रिकेट्स, जस्ट दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विथ रेगुलर डोजेज ऑफ विटामिन D. तो इसमें भी कैल्शियम वुड बी लो, इसमें भी PTH वुड बी हाई, जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया गया है. सो डेफिनेटली दिस इज नॉट द आंसर. द आंसर वुड बी हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स वेयर इन यू हैव लो फॉस्फेट लेवल्स विथ नॉर्मल कैल्शियम एंड नॉर्मल PTH. तो एक फ्लो चार्ट हम पढ़ेंगे अभी आगे कि हाउ टू डिफरेंशिएट दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकेट्स. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू इवैल्यूएट अ चाइल्ड विद रिकेट्स. आपके पास कोई भी बच्चा आता है एंड यू आर सस्पेक्टिंग रिकेट्स इन दैट चिल्ड्रन, आप सबसे पहले उसको विटामिन D देंगे, बिकॉज मोस्ट कॉमन इज योर न्यूट्रिशनल रिकेट्स. विटामिन D के साथ यू विल गिव कैल्शियम टू द चाइल्ड, और कैल्शियम और विटामिन D आप अप्रॉक्सीमेटली 3 months के लिए दोगे. एंड आफ्टर 3 months यू वुड सी कि इज द चाइल्ड रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट और नॉट. रिस्पॉन्स देखने के लिए आप एक्सरे देखोगे, एक्सरे में यू वुड सी कि हीलिंग लाइन है या नहीं. ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे ALP लेवल्स कम होने शुरू हो जाएंगे. दैट मीन्स यू आर द चाइल्ड इज रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट. और अगर रिस्पॉन्ड कर रहा है बच्चा, दैट मीन्स डेफिनेटली दिस इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रिकेट्स. पर अगर रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा है, दैट यू विल सी सीरम फॉस्फेट लेवल्स. सीरम फॉस्फेट रिकेट्स में सिर्फ 2 ही कंडीशंस में बढ़ता है, दैट वन इज CKD एंड अदर इज सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म. तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए इजीली यू कैन डू क्रिएटिनिन एंड डिफरेंशिएट देम. क्रिएटिनिन बड़ा होगा तो CKD होगा, और अगर क्रिएटिनिन नॉर्मल होगा तो सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म होगा. तो ये लिम तो इस तरीके से सॉर्ट आउट हो गया. बट इफ यू हैव लो फॉस्फेट इन अ चाइल्ड हु इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू योर विटामिन D थेरेपी, तो आप ब्लड गैस करोगे. ब्लड गैस में यू कैन गेट एसिडोसिस और यू कैन गेट अ नॉर्मल pH. एसिडोसिस है विद लो फॉस्फेट लेवल्स, दिस इज डेफिनेटली RTA. ठीक है, तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगा. बट अगर ब्लड गैस भी नॉर्मल आती है, तो अब नेक्स्ट लिम में यू वुड गो विथ कैल्शियम एंड PTH. अगर कैल्शियम और PTH आपने किया, कैल्शियम लेवल्स इज नॉर्मल, PTH लेवल्स इज नॉर्मल, बट यू हैव जस्ट फॉस्फेट विच इज लो, दिस इज और क्लासिकल हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, जो हमारा केस भी था, है ना. पर अगर आपकी कैल्शियम लेवल्स लो हैं, PTH लेवल्स हाई है, मतलब कैल्शियम लो होगा तो PTH तो बढ़ेगा ही, तो हम सस्पेक्ट करते हैं दैट द चाइल्ड हैज VDDR विच इज विटामिन D डिपेंडेंट रिकेट्स. विटामिन D डिपेंडेंट रिकेट्स 2 तरीके का होता है, वन इज टाइप 1 एंड अदर इज टाइप 2. टाइप 1 में आपका जो एक्टिवेटिंग एंजाइम है दैट इज 1 हाइड्रोक्सिलेज, उसकी डेफिशिएंसी होती है. और टाइप 2 में क्या होता है, रिसेप्टर की जो हमारी सेंसिटिविटी है वो खत्म हो गई है, मतलब द रिसेप्टर इज नॉट सेंसिटिव टू योर एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D. तो आपके पास जितना भी एक्टिव विटामिन D हो, इट इज नॉट गोइंग टू एक्ट. तो इसको हम चेक करने के लिए कैल्सीट्रायोल और योर एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D का ट्रायल देते हैं. एंड इफ द चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स दैट इट इज विटामिन VDDR टाइप 1, एंड इफ द चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग इट इज VDDR टाइप 2. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एवेल्युएट अ चाइल्ड विद रिकेट्स. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप में हमने किया कि उसको रेजिस्टेंस है या नहीं है, वो देख लिया. एक बार आपने पता कर लिया कि बच्चे को रेजिस्टेंस है, तो उसके बाद क्या क्या सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप करोगे. सबसे पहले आप करोगे फॉस्फेट लो है या हाई है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन करोगे. अगर फॉस्फेट हाई है तो आप क्रिएट करोगे, और अगर फॉस्फेट लो है तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट ब्लड गैस करोगे. ब्लड गैस के बाद अगर नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन आपसे कोई पूछेगा, देन यू वुड डू कैल्शियम एंड PTH. और ये सिर्फ छोटी सी एक फ्लो चार्ट को याद करके यू कैन डिफरेंशिएट व्हाट काइंड ऑफ रिकेट्स दिस इज. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डे टू डे लाइफ ऑल्सो. Let's discuss the next question, which is a newborn presents with difficulty in breathing. On examination, hard sounds were heard in the right hemithorax. Gurgling sounds were heard on the auscultation on the left side. Radiographic image confirmed congenital diaphragmatic hernia. The most common site of defect in this condition is. यहाँ पे आपको डायग्नोसिस तो दे दिया गया है, एंड बेस्ड ऑन दिस डायग्नोसिस यू हैव बीन आस्क्ड सम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. CDH वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि CDH बार बार रिपीट हो रहा है. CDH है या CLE है या फिर CPAM है, यू हैव टू बी थरो विद दीज टॉपिक्स. तो CDH के बारे में इन्होंने पूछा व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ डिफेक्ट इन दिस कंडीशन, एंड वी नो दैट इट इज लेफ्ट पोस्टेरोलेटरल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इजी क्वेश्चन. अब CDH के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए. लेट्स सी व्हाट आर दोज. तो CDH क्या होता है, CDH में देयर इज एन एनाटॉमिकल डिफेक्ट इन द डायफ्राम. डायफ्राम में देयर इज अ डिफेक्ट, उसकी वजह से
क्या होता है कि योर एब्डोमिनल कंटेंट्स दे आर गोइंग इनटू योर थोरैसिक कैविटी। अब ये डिफेक्ट क्यों रह जाता है? बिकॉज जो हमारी प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, जो हमारा डायफ्राम के पूरे डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती है, दैट इज नॉट फ्यूजिंग प्रॉपरली। उसकी वजह से डिफेक्ट रिमेन्स और उस डिफेक्ट से योर एब्डोमिनल कंटेंट्स दे गो इनटू योर थोरैसिक कैविटी। तो यहाँ पे वही होता है, एब्डोमिनल कंटेंट्स हर्निएट इनटू द थोरैक्स, कॉज पुअर डेवलपमेंट ऑफ द लंग्स एंड मीडियास्टिनल शिफ्ट टू द ऑपोजिट साइड। अब एब्डोमिनल कंटेंट्स एक तरफ से आपके थोरैसिक कैविटी में आने लगेंगे तो उस तरफ का लंग तो डेफिनेटली डेवलप नहीं हो पाएगा, तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा तो उस तरफ का लंग हाइपोप्लेजिया होगा। एंड अगर एक हेमिथोरैक्स में प्रेशर बढ़ रहा है तो दैट इज गोइंग टू कॉज मीडियास्टिनल शिफ्टिंग टू द ऑपोजिट साइड। इसकी वजह से क्या होगा, जिस तरफ आपको बावल साउंड्स दिख रहे हैं उससे ऑपोजिट साइड यू वुड हियर दी हार्ट साउंड्स, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के कॉमन टाइप्स होते हैं सीडीएच के। वन इज योर बॉशडेलिक हर्निया एंड अदर वन इज मॉर्गैगनी। बॉशडेलिक इज मोर कॉमन देन योर मॉर्गैगनीज हर्निया एंड बॉशडेलिक इज ऑन द लेफ्ट पोस्टेरोलेटरल साइड. This is your Bostelek hernia, which is on the left posterolateral side, and the Morgagni is the lesser common variant, which is on the right anteromedial side. So this is your Morgagni hernia, and these are the defects. यहाँ से आपके abdominal contents ऊपर आ जाते हैं. इसमें क्या ट्राइड दिखेगा आपको? एक तो होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. सबसे पहले तो आपके कंटेंट्स ही abdomen से निकल के thoracic cavity में आ गए, तो ऑब्वियसली लंग एक्सपैंड नहीं हो पाएंगे और ऑलरेडी ये लंग्स जो है हाइपोप्लास्टिक है, तो डेफिनेटली बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा. अब क्योंकि एब्डोमेन के कंटेंट्स आपके थोरैसिक कैविटी में चले गए हैं तो उसको स्किफॉइड एब्डोमेन भी होगा और इसी वजह से देयर विल बी मीडियास्टिनल शिफ्ट. सो दिस इज द ट्राइड ऑफ सीडीएच. यू हैव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यू हैव मीडियास्टिनल शिफ्टिंग एंड यू हैव अ स्किफॉइड एब्डोमेन. इन्हीं एग्जामिनेशन फाइंडिंग से यू कैन डायग्नोज कि बच्चे को सीडीएच है. अब इंपॉर्टेंट इज बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड हियर, क्योंकि बैग एंड मास्क वेंटिलेशन में एयरवे में भी एयर जा रही है और आपकी ईसोफेगस में भी एयर जा रही है, और अगर आपकी बाउल में एयर जाती है दैट इज गोइंग टू फर्दर कॉम्प्रोमाइज द लंग का एक्सपेंशन, तो आरटी और बढ़ेगा ही. तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड हियर. अब कुछ एक ऐसी फाइंडिंग्स होती हैं विच इंडिकेट दैट द चाइल्ड हैज पुअर प्रोग्नोसिस. तो वो क्या है? वन इज कि अगर आपका लिवर ही हर्निएट करके थोरैक्स में पहुंच गया, जैसा हमें यहाँ दिख रहा है कि द लिवर इज हर्निएटिंग इनटू द थोरैक्स, दिस इज अ पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर. इसके अलावा द चाइल्ड हैज पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है आपका लंग का फंक्शन, ऑक्सीजनेशन ढंग से नहीं हुआ एंड द चाइल्ड हैज डेवलप्ड पल्मोनरी हाइपरटेंशन. सो दिस इज ऑल्सो अ पुअर प्रोग्नोस्टिक मार्कर. द चाइल्ड प्रेजेंट्स अर्ली विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, मतलब सीवियर थी कंडीशन इसीलिए तो जल्दी प्रेजेंट किया, तो इसका मतलब इसका भी पुअर प्रोग्नोसिस ऐसे है. एंड द लंग टू हेड का रेशियो इज लेस देन 1. इसका मतलब लंग का एक्सपेंशन इतना कम हो रहा है दैट योर हेड का जो हेड का लंग का और हेड का रेशियो इज लेस देन 1. सो दीज आर दी पुअर प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स और इंडिकेटर्स जो आपको बताते कि द प्रोग्नोसिस ऑफ द चाइल्ड इज नॉट गुड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सीडीएच एज होल ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, साथ में बाकी के साथ डिफरेंशिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट. सो दिस इज अ वेरी हाई स्कोरिंग टॉपिक फॉर यू ऑल. Let's move on to the next question, which is which of the following should not be done shortly after normal delivery of the baby. तो इसमें ये बात कर रहे हैं कि नॉर्मल न्यूबॉर्न जो पैदा होता है उसकी केयर में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए. लेट्स सी कि ऑप्शंस क्या क्या हैं. सबसे पहला है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद मदर. डेफिनेटली ये तो एडवाइज्ड ही है दैट immediately after birth you put the child onto the mother's abdomen and maintain skin to skin contact. ये बच्चे का हाइपोथर्मिया प्रिवेंशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एपनिया प्रिवेंशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हैं. सो डेफिनेटली दिस इज वन थिंग यू शुड बी डूइंग जस्ट आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी ऑफ द बेबी. अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, ऑब्वियसली दिस इज promoted. Within 30 minutes of a normal delivery, you need to start breastfeeding of a child. So this is also done. Eye care using wet swab with medial to lateral. पहले हम बोलते थे that हम जो हमारा ऑफ्थेल्मिया नियोनेटोरम होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट वगैरह डालते थे रूटीनली इन द आईज, बट देखा गया था दैट इट कॉजेस फर्दर इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस बिकॉज ये एसेप्टिकली नहीं किया जाता है. बट इफ़ यू आर using this wet swab without any medication and you are doing it in sterile way and you're cleaning the eye from medial to lateral, this can be done. So this can also be done. Bathing the baby with warm water, this is definitely a no. The baby should not be bathed immediately. Usually the bathing is deferred at least for 24 hours. 24 hours के बाद you can do wet sponging of the baby, but as such bathing the baby is usually done when the umbilical cord falls off, that is at least after 7 days of life. So this is definitely one thing you should not be doing after a normal delivery of the baby, and this is the correct answer here. Let's move on to the next question. You are given a 6-week-old neonate who presented with repeated episodes of non-bilious vomiting. USG picture is given below. What is the likely diagnosis? तो यहाँ पे आपको एक USG picture दी है और इसमें एज ग्रुप है 6 weeks.
ठीक है, नियोनेट है और उसको नॉन बिलियस वॉमिटिंग हो रही है, रिपीटेडली नॉन बिलियस वॉमिटिंग हुई जा रही है। यूएसजी पिक्चर जो हमें दी है इसमें आपको ये दिख रहा है, अब ये आपका है स्टमक और ठीक है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर पाइलोरस। पाइलोरस में ये तो थिकनिंग भी बहुत ज़्यादा है पाइलोरस की, और ये जो पाइलोरिक कैनाल है ये भी बहुत बड़ी दिख रही है। सो दिस इज डेफिनेटली व्हाट, दिस इज इडियोपैथिक हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस और IHPS। सो दिस इज द आंसर हियर, है ना। तो अभी आगे हम देखते हैं कि IHPS में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंदर से कुछ कुछ फैक्ट बेस्ड चीजें आपसे टेस्ट की जाती हैं रेगुलरली इन द एग्जाम। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज IHPS। IHPS इज इडियोपैथिक हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसमें यू हैव द सर्कुलर मसल्स ऑफ द पाइलोरस का हाइपरट्रोफी, सो हाइपरट्रोफी ऑफ सर्कुलर मसल्स इन द पाइलोरस विच कॉज स्टेनोसिस, और इसकी वजह से यू गेट ऑल द ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स जो हम देखते हैं। कॉमनली ये फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड और दैट टू इन द मेल, सो फर्स्ट बॉर्न मेल्स में कॉमनली मिलता है और एंटीनेटल एरिथ्रोमाइसिन यूज के साथ एसोसिएटेड होता है। सो दीज आर सम ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल फैक्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दिस कंडीशन इन द एग्जाम। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, ये यूजुअली 3 वीक्स के बाद प्रेजेंट करते हैं, 3 to 4 वीक्स के बाद। हमारे केस में यहाँ पर 6 वीक्स पे द चाइल्ड प्रेजेंटेड एंड दे प्रेजेंट विद नॉन बिलियस एंड प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ठीक है। एक ऑलिव शेप लम्प भी आपको दिखाई दे सकता है इन दी एपिगेस्ट्रियम, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यू गेट टू सी दी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब आपके स्टमक से निकलते हुए टू द ड्यूडेनम, यू कैन सी दिस। तो लेफ्ट से राइट की तरफ यू गेट टू सी द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स ऑल्सो। एंड वट इज क्लासिकल हियर इज दैट यू गेट हाइपोकलिमिक, हाइपोक्लोरेमिक, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही है तो ऑल द पोटेशियम एंड ऑल द क्लोराइड दैट इज इन दी गैस्ट्रिक जूस वो लॉस होता है, उसकी वजह से यू गेट हाइपोकैलिमिक, हाइपोक्लोरेमिक, और क्योंकि एसिड लॉस हो रहा है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अलॉन्ग विथ पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया। पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया के साथ यू गेट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ऑफन फैक्ट की तरह भी आपसे पूछा जाता है इन द एग्जाम, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज USG, जैसा कि हमें इन द एग्जाम दिया गया था। USG पे देर इज सम क्राइटेरिया जो हमें पता होना चाहिए। वन इज द थिकनेस ऑफ द पाइलोरस, तो थिकनेस कितनी होनी चाहिए पाइलोरस की, जो थिकनेस है इट शुड बी मोर देन 4 mm, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी पाइलोरिक कैनाल है, जो उसकी क्या लेंथ होनी चाहिए, जो पाइलोरिक कैनाल है उसकी लेंथ शुड बी मोर देन 16 mm। So this is the criteria on USG which is used for diagnosis of IHPS. The thickness of the pylorus should be more than 4 mm and the length of the pyloric canal it should be more than 16 mm. मैनेजमेंट क्या होता है कि जब आपके पास बच्चा डिहाइड्रेशन के साथ आएगा आप उसको डिहाइड्रेशन को करेक्ट करोगे। इसमें हम N/2 D5 अलॉन्ग विथ KCl सप्लीमेंटेशन देते हैं। साथ में जो हमारा डेफिनेटिव मैनेजमेंट है दैट इज डेफिनेटली सर्जरी। आप रेमस्टेड्स पाइलोरोमायोटमी करोगे, आप उसकी जो सर्कुलर मसल्स हैं उनको कट आउट करोगे बिकॉज दे आर सो थिक एंड दैट इज कॉजिंग ऑल द स्टेनोसिस एंड द vomiting. So this is what is IHPS. ठीक है, let's move on to the next question. We have a 2-year-old boy who is brought to the pediatric OPD for growth retardation. मदर उसको ग्रोथ रिटार्डेशन के लिए लाई है। ऑन एग्जामिनेशन द चाइल्ड हैज सिग्निफिकेंट हिपैटोमेगली with anemia and bone pains. Bone marrow में आपको दिया गया है the macrophages have crumpled tissue paper appearance. This is the keyword here. And what is the underlying deficiency in this child? एक बच्चा है जिसको growth failure है, उसको हिपैटोमेगली है, उसको bone pain है, उसको anemia है, and most importantly bone marrow में आपको crumpled tissue paper appearance मिल रहा है. This is nothing but your Gaucher's disease. ठीक है, तो Gaucher's disease है, और गाउचर्स डिजीज में क्या होता है वी ऑल नो कि ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी होती है। सो द डेफिनेट आंसर वुड हियर विड बी ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज। गाउचर्स डिजीज या फिर बाकी जितने भी लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स हैं या फिर आपके ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स भी हैं, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यू ऑफन गेट अ क्लिनिकल सिनेरियो विद दीज कीवर्ड्स एंड द एंजाइम डेफिशिएंसी कैन बी आस्क्ड, और अदर वे राउंड आपको डिजीज भी पूछा जा सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। सो गाउचर्स के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या पता होना चाहिए, दैट इट इज़ द मोस्ट कॉमन लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। सो इसीलिए ये कॉमनली आपसे पूछा भी जाता है। इसमें यू हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज जैसा हमने अभी पढ़ा, और इस ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी की वजह से यू हैव एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसाइड्स इन द मैक्रोफेज विच गिव राइज टू योर गाउचर सेल। गाउचर सेल जो हमने पढ़ा विच हैज़ अ क्रम्पल टिश्यू पेपर अपीयरेंस ऑन हिस्टोपैथोलॉजी, वो यहाँ पे बनता है इस वजह से। You have on clinical features splenohepatomegaly. The child has bone pain. This is classical of this lysosomal storage disorder. You have pancytopenia because of marrow involvement, and they may have some neurological involvement also.
बोन मैरो बायोप्सी हम करते हैं, उसमें मैक्रोफेजेस के अंदर आपको गाउचर सेल दिख जाते हैं, दैट इज योर क्रम्पल टिश्यू पेपर अपीयरेंस। ये बहुत ही क्लासिकल है। अगर आप लॉन्ग बोन्स का एक्सरे करोगे तो आपको अर्लन-मेयर फ्लास डिफॉर्मिटी मिलेगी देखने के लिए। दिस वी विल सी कि हाउ इट लुक्स, और इसका मैनेजमेंट क्या है, बिकॉज देयर इज अ सर्टेन एंजाइम विच इज डेफिशिएंट। आपको एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी है, और यू कैन डू हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन ऑल्सो। सो दिस इज व्हाट इज गाउचर्स डिजीज, जिसमें ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी की वजह से यू हैव एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, दिस फॉर्म्स गाउचर सेल्स। मैरो का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसकी वजह से यू हैव पैनसाइटोपिनिया, यू हैव बोन पेन्स, यू हैव अर्लन-मेयर फ्लास डिफॉर्मिटी, और एक्स्ट्रामेडुलरी हिमैटोपोइसिस की वजह से यू हैव स्प्लीनोहेपेटोमेगली। सम न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट कैन ऑल्सो बी सीन। तो अगर आपके पास बच्चा आएगा वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। बिकॉज ऑफ ह्यूज और मैसिव स्प्लीनोहेपेटोमेगली यू हैव द चाइल्ड जिसका बहुत ही डिस्टेंडेड और एनलार्ज्ड एब्डोमेन होगा, ठीक है, और उसको मोटर डिले या फिर डेवलपमेंटल डिले भी साथ में होगा। दिस इज व्हाट अ क्रम्पल टिश्यू पेपर और अ गाउचर सेल लुक्स लाइक। अगर हम बोन मैरो करते हैं तो हिस्टोपैथोलॉजी पे दिस इज द क्रम्पल टिश्यू पेपर अपीयरेंस। अब यहाँ पर हमें एक्सरे में दिख रहा है, लॉन्ग बोन्स के एक्सरे में दिस इज द अर्लन-मेयर फ्लास्क डिफॉर्मिटी, दिस इज द अर्लन-मेयर फ्लास्क। तो ये जो अर्लन-मेयर फ्लास्क होता है, इसकी तरह द डिस्टल एंड्स ऑफ योर बोन्स दे आर ब्रॉडेंड, जिसको हम बोलते हैं अर्लन-मेयर फ्लास्क डिफॉर्मिटी, कॉमनली लॉन्ग बोन्स के अंदर देखने को मिलता है। So let's look at the next question. In this you have a floppy infant with recurrent episodes of hypoglycemia and evaluation reveals cardiomyopathy. What is the likely diagnosis? तो एक आपको जितने भी इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मोस्ट लाइकली आपको लगता है कि दिस इज सम स्टोरेज डिसऑर्डर जिसके अंदर बच्चे को बहुत बार हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। यूजुअली हाइपोग्लाइसीमिया आपके ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स का एक मार्कर होता है। इसके साथ यू हैव कार्डियोमायोपैथी, एंड इंपॉर्टेंट इज द चाइल्ड इज फ्लॉपी बच्चा है, हाइपोग्लाइसीमिया है और कार्डियोमायोपैथी है। एक ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है, और ये कौन सा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है, बिकॉज यहाँ पे फ्लॉपी इन्फेंट और कार्डियोमायोपैथी दिया है, तो वी गो ऑन टू थिंक दैट दिस इज पॉम्पेज डिजीज। द आंसर हियर वुड बी पॉम्पेज डिजीज। वॉन गिर के भी हमारा एक ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है, बट उसमें हमें कार्डियोमायोपैथी कॉमनली नहीं मिलता है, सो दिस इज आउट हियर। एब्स्टीन्स नॉर्मली हमें पता है कि एंटीनेटल लिथियम इंटेक की वजह से मिलता है। दिस इज योर हार्ट डिजीज, जिसके अंदर आपका बॉक्स शेप्ड हार्ट मिलता है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। मेकार्डल्स डिजीज के अंदर आपका मेनली योर स्केलेटल मसल्स आर इन्वॉल्व, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। तो लेट्स सी पॉम्पेज डिजीज के बारे में what all you need to remember. So Pompe's disease is the type 2 glycogen storage disorder. ठीक है, Pompe's disease में you have deficiency of acid maltase और your alpha 1,4 glucosidase, तो ये एंजाइम इन्वॉल्व है इसके अंदर। और क्लिनिकल फीचर जो बहुत ही क्लासिकल हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चन में दिए गए थे, दैट इज हाइपोटोनिया, कार्डियोमेगली एंड हिपैटोमेगली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया के साथ हाइपोटोनिया और कार्डियोमायोपैथी के साथ आता है, आपको जरूर से जरूर पॉम्पेज डिजीज सोचना है। तो इसके अंदर हमें याद रखना है पी से पॉम्पेज एंड पी से पंप का मैल फंक्शन। तो अगर आपका पंप यानी कि योर हार्ट इज अफेक्टेड, यू थिंक ऑफ पॉम्पेज डिजीज। इसका भी जो ट्रीटमेंट है दैट वुड बी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। यहाँ पर ये हमें दिख रहा है, दिस इज द फ्लॉपी इन्फेंट। अगर आप उसको सुपाइन पोजिशन में लेटाएंगे, यू वुड सी कि कोई फ्रॉग लाइक पॉस्चर रिज्यूम करते हैं, बिकॉज देयर इज सो रिड्यूस्ड टोन। तो ये एक फ्रॉग लाइक पॉस्चर है बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड टोन। और अगर आप इनको वेंट्रल सस्पेंशन में रखते हैं, यू गेट दिस रैगेड डॉल अपीयरेंस बिकॉज द टोन इज सो लेस। So this is all about Pompe's disease you need to know. So the next question is, a child is recently diagnosed as ADHD. What is the drug of choice for this condition? So ये एक direct fact based question है जिसमें आपसे ADHD के बारे में बात की गई है। अब जो ADHD होता है, ADHD is attention deficit hyperactivity disorder, और इसकी जो drug of choice होती है that is methylphenidate। ठीक है, तो ये fact based question था। ADHD के अंदर हमें पता है कि there are two things। एक तो होता है inattention, अटेंशन डेफिसिट होना, ठीक है। दूसरा होता है हाइपर एक्टिविटी होना। यूजुअली इसका डायग्नोसिस आप 6 to 7 ईयर्स के बाद ही बनाते हो, और जब आपको ये सारे सिम्टम्स एक से ज़्यादा सिचुएशंस में देखने को मिलते हैं तो आप इसका डायग्नोसिस बनाते हो ADHD का। जो ADHD का ट्रीटमेंट है, इसके अंदर यू हैव फार्माकोथेरेपी एज वेल और साइकोथेरेपी एज वेल। सो ट्रीटमेंट इन ADHD में यू हैव फार्माकोथेरेपी में स्टिमुलेंट्स एंड नॉन स्टिमुलेंट्स। तो स्टिमुलेंट्स में यू हैव मिथाइलफेनिडेट, नॉन स्टिमुलेंट्स में यू हैव एटोमॉक्सिटीन, एंड मिथाइलफेनिडेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। फर्स्ट लाइन आपकी आफ्टर 6 to 7 ईयर्स ऑफ एज, आप जब फार्माकोथेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं, तो द ड्रग ऑफ चॉइस हियर इज मिथाइलफेनिडेट। एटोमॉक्सिटीन कैन बी यूज्ड बट ड्रग ऑफ चॉइस मिथाइलफेनिडेट ही है, ठीक है। इसके अलावा यू सप्लीमेंट दिस फार्माकोथेरेपी विद साइको एजुकेशन एंड बिहेवियरल इंटरवेंशंस टू ट्रीट दिस ADHD। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ ADHD।
Let's move on to the next question. An unimmunized 5-year-old child comes to the OPD. Brother is immunized. You see a white membrane in throat on examination. What is the first step in the management of this child? तो आपको एक बच्चा दिया गया है, अनइम्यूनाइज्ड है, वो OPD में आता है और उसको व्हाइट मेम्ब्रेन आपको दिख रही है. तो अनइम्यूनाइज्ड बच्चा है, व्हाइट मेम्ब्रेन दिख रही है, स्ट्रेट अवे द डायग्नोसिस इज डिफ्थीरिया हियर, है ना. तो डिफ्थीरिया में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट हियर, कि आप उसको डिफ्थीरिया एंटीटॉक्सिन दोगे, डिफ्थीरिया टॉक्सिन दोगे, पेनिसिलिन दोगे या सिप्रोफ्लॉक्सिसिन दोगे. द फर्स्ट स्टेप वुड बी डिफ्थीरिया एंटीटॉक्सिन. सो लेट्स सी कि डिफ्थीरिया का ट्रीटमेंट आप करते कैसे हो. डिफ्थीरिया की मैनेजमेंट में फर्स्ट थिंग इज सपोर्टिव मैनेजमेंट. ठीक है, सपोर्टिव मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा कि अगर बच्चा शॉक में आया है तो आप शॉक को ट्रीट करोगे, एयरवे अफेक्टेड है तो एयरवे को ट्रीट करोगे. तो वो सब सपोर्टिव मैनेजमेंट तो आप दे ही रहे हो. साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू गिव एंटी डिफ्थीरिया एंटीटॉक्सिन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर जो भी डिफ्थीरिया की वजह से टॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन बना है, उसको आपको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है. यू गिव 10,000 to 30,000 इंटरनेशनल यूनिट्स एंड दिस इज गिवन IM. इसके अलावा आपने जो एंटीटॉक्सिन बन गया था उसको तो न्यूट्रलाइज किया विद द हेल्प ऑफ दिस एंटीटॉक्सिन, बट यू हैव टू स्टॉप फर्दर प्रोडक्शन ऑफ एक्सोटॉक्सिन एज वेल. उसके लिए यू गिव दीज एंटीबायोटिक्स. ये एंटीबायोटिक्स दो काम करते हैं. एक तो ये स्प्रेड को प्रिवेंट करते हैं टू अदर पर्सन्स और दूसरी चीज़ ये टॉक्सिन प्रोडक्शन को भी रोकते हैं. तो यू कैन गिव ईदर पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन टू kill these diphtheria bacilli and halt the toxin production. अब जब भी आप किसी बच्चे जो भी आपके पास डिफ्थीरिया के साथ आता है, आफ्टर गिविंग दिस ट्रीटमेंट यू शुड ऑलवेज फॉलो दिस विद एक्टिव इम्यूनाइजेशन. मतलब आपको उसको इम्यूनाइज करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इन्फेक्शन इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी टू द चाइल्ड. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद ये तो था हमारा ट्रीटमेंट. हाउ टू प्रिवेंट. प्रिवेंशन के लिए हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, जो भी पेशेंट है जिसको भी एक्टिव डिजीज है, यू हैव टू आइसोलेट द चाइल्ड टिल 2 कंसेक्यूटिव नेजल और थ्रोट कल्चर्स आर नेगेटिव. जब तक उसके कल्चर्स 2 कंसेक्यूटिव नेगेटिव नहीं आ रहे हैं आप उस बच्चे को अलग से आइसोलेटेड ही रखोगे. ऑल दी कॉन्टैक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द immunization status, you have to give them erythromycin or penicillin. This is very important. और ऐसे ये लोग अगर previously immunized थे, just give the booster dose of diphtheria toxoid. और अगर fully immunized नहीं थे तो पूरा immunization schedule you have to follow. So this is very important. fully immunized की बात यहाँ पर हो रही है तो 4 doses you have to have. मतलब 3 तो आपके जो normal doses हैं and plus 1 booster. अगर किसी को भी ये नहीं मिला है तो you have to fully immunize this child. So this is important. This is how you manage the diphtheria. So you give supportive management, you give antitoxin along with antibiotics. और जिस बच्चे को भी disease है you have to follow it with active immunization. Prevention के लिए you can give erythromycin or you can give penicillin जो आप treatment में भी use कर रहे हैं. And you have to see according to the immunization whether to give just the booster or you have to immunize the child altogether. So let's move on to the next question. Here you have to identify the condition based on the image you have been provided. यहाँ पे options आपको दिए हैं ओम्फैलोसील, गैस्ट्रोस्काइसिस. ओम्फैलोसील और गैस्ट्रोस्काइसिस जो होते हैं ये आपके मतलब कि गट से रिलेटेड इश्यूज हैं. तो उसमें आपको अगर कुछ भी दिखाई देगा इट हैज़ टू हैव गट. तो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है तो दिस इज नॉट ओम्फैलोसील, दिस इज नॉट गैस्ट्रोस्काइसिस. पेटेंट विटेलो इंटेस्टिनल डक्ट यूजुअली इस तरीके से आपको बिलो दी अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं दिखता है. इट यूजुअली लुक्स लाइक एन अम्बिलिकल ग्रैनुलोमा. सो दिस इज ऑल्सो नॉट PID. सो दिस इज व्हाट इज एक्सट्रोफी ब्लैडर. एक्सट्रोफी ब्लैडर में क्या होता है, आपका ब्लैडर जो है ये आउटसाइड डेवलप करता है और इसमें इट इज टर्न इनसाइड आउट, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दिस इज द ब्लैडर विच इज टर्न इनसाइड आउट. सो लेट्स सी कि बाकी सारी कंडीशंस किस तरीके से दिखती हैं. तो अगर आपको पेटेंट विटेलो इंटेस्टिनल डक्ट होती है तो पेटेंट विटेलो इंटेस्टिनल डक्ट क्या है, विटेलो इंटेस्टिनल, इसका मतलब क्या है, आपके अम्बिलिकस को इंटेस्टाइन से जोड़ती है. सो यू हैव अ डक्ट जो आपके अम्बिलिकस से लेके इंटेस्टाइन्स तक जाती है एंड यूजुअली इट कैन फॉर्म अ फिस्चुला और उसके थ्रू यू कैन सी समथिंग कमिंग आउट. अब ये आपको अम्बिलिकल ग्रैनुलोमा जैसा दिखाई देता है तो देयर इज समथिंग स्मॉल मास विच इज ओवर दिस अम्बिलिकस. सो दिस इज योर पेटेंट विटेलो इंटेस्टिनल डक्ट. अब यहाँ पे हमें 2 इमेजेस दिख रही हैं जिसमें हमें गट दिखाई दे रहा है. सो वन इज गैस्ट्रोस्काइसिस एंड वन इज ओम्फैलोसील. हमें बहुत ही मतलब एक निमोनिक याद है दैट गैस्ट्रोस्काइसिस इट स्टार्ट्स विद G. सो दिस इज गोइंग टू बी ओपन, इट डज नॉट हैव अ कवरिंग. ओम्फैलोसील हैज O, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी कवर्ड एंड इट हैज अ कवरिंग
ओवरलाइंग इट। तो गैस्ट्रोस्काइसिस में आपके जितने भी बावल लूप्स होते हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं कि एब्डोमिनल वॉल से बाहर आ रहे हैं एंड देयर इज नो कवरिंग ओवरलाइंग इट। जबकि ओम्फैलोसील में क्या होता है कि आपके गैस्ट्रिक कंटेंट्स एंड इंटेस्टाइन्स दे आर आउट और दे आर कवर्ड विद अ सैक, जो ओम्फैलोसील में हमें दिखता है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट ऑल दीज कंडीशंस। Let's see the next question. Here you have the question as what is the investigation of choice in a child with posterior urethral valve? तो एक anomaly दी है आपको कि posterior urethral valve में what is the investigation of choice? As we all know कि posterior urethral valve में क्या होता है कि आपकी जो posterior urethra है उसके अंदर you have a valve like membrane जिसकी वजह से आपका urinary obstruction देखने को मिलता है। You have a weak stream of urine and you have bladder which is thickened and has trabecula. तो इसकी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है दैट इज मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, नॉट यूएसजी, नॉट इंट्रावीनस पाइलोग्राम, नॉट सीटी स्कैन, बट मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, बिकॉज इसमें आपको लाइव दिखाई देगा हाउ द ऑब्स्ट्रक्शन इज, क्योंकि इसमें द चाइल्ड इज मिक्चुरेटिंग एंड यू आर सीइंग इट अंडर द फ्लोरोस्कोपी, जिससे आपको पता चलेगा कि देयर इज सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द पोस्टीरियर यूरेथ्रा। तो कैसे ये डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन हमें दिखती हैं, लेट्स सी। अगर आप यूएसजी करते हो ऑफ अ चाइल्ड हु हैज पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, तो इसमें क्या होता है कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा में देयर इज अ वाल्व दैट इज कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से उसके ऊपर वाला पूरा एरिया वुड बी डायलेटेड। तो आपको डायलेटेड ब्लैडर दिखेगा एंड यू वुड सी सम पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा दैट वुड बी डायलेटेड। इसके आगे यू हैव द ऑब्स्ट्रक्शन, हियर यू हैव द यूरेथ्रल वाल्व इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। सो दिस गिव्स इट अ की होल साइन। सो ये होता है की होल साइन जो हमें दिखाई देता है ऑन यूएसजी। सिमिलरली द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस दैट इज मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, इस पे आपको कैसा दिखता है? तो मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम में क्या करते हैं हम, ब्लैडर के अंदर हम इसको पहले से कैथेटराइज करते हैं और इसके अंदर डाई डालते हैं, ठीक है। अब जब बच्चा मिक्चुरेट करेगा उस टाइम पे यू वुड सी अंडर फ्लोरोस्कोपी कि ये किस तरीके से जो यूरिन है मूव कर रहा है, क्योंकि इट हैज़ डाई नाउ। तो यहाँ पर यू वुड सी कि ये तो हमारा ब्लैडर है पूरा का पूरा, इसके बाद ये यूरेथ्रा आ रही है, बट यूरेथ्रा में एक पॉइंट के बाद यू हैव ऑब्स्ट्रक्शन और उसके आगे बहुत ही वीक और थिन स्ट्रीम है यूरिन की। इसका मतलब यू हैव ऑब्स्ट्रक्शन इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। दिस इज योर पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम एंड दिस इज हाउ इट लुक्स ऑन योर यूएसजी। सो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस जो हम करते हैं इन अ चाइल्ड हु हैज सस्पेक्टेड पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। ये बच्चे कैसे प्रेजेंट करते हैं? वीक यूरिन के साथ, वीक यूरिनरी स्ट्रीम के साथ यूजुअली ये प्रेजेंट करते हैं। Later on, they develop vesico-ureteric reflux and they can develop CKD also if not treated in time. So this is very important. So the next question is, an infant presents with vomiting after feeding. The Benedict's test was done which was positive for NGRS. On examination, the child has hepatomegaly and the child has oil drop cataract. What is the likely diagnosis? तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा एक कीवर्ड दिया गया है दैट इज ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट, जिससे हम बहुत ही इजीली पता लगा सकते हैं व्हाट इज द कंडीशन एंड द कंडीशन हियर इज गैलेक्टोसीमिया। इसमें और भी हमें कुछ कुछ क्लूज दिए गए हैं कि इन्फेंट हैज persistent vomiting और बेनेडिक्ट टेस्ट वॉज पॉजिटिव फॉर नॉन ग्लूकोज रिड्यूसिंग सब्सटेंसेज ऑल्सो, क्योंकि गैलेक्टोसीमिया में यू हैव गैलेक्टोज का एक्सक्रीशन इन द यूरिन विच इज नॉन ग्लूकोज। सो बेनेडिक्ट टेस्ट वॉज पॉजिटिव और द चाइल्ड हैज हेपेटोमेगली एंड ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट। सो गैलेक्टोसीमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी व्हाट गैलेक्टोसीमिया इज एक्चुअली। तो गैलेक्टोसीमिया के अंदर यू हैव वन डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम दैट इज गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज। सो ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। यूजुअली एंजाइम डेफिशिएंसीज दे आर ऑटोसोमल रिसेसिव। तो गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज की जब डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से क्या क्या हमें देखने को मिलता है? जब भी आप मिल्क लेते हो, मिल्क कंटेन्स लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है ये ब्रेक डाउन होता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज का तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो जाता है, बट सिंस यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज, गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है एंड दिस गैलेक्टोज इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग इन द फॉर्म ऑफ गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट। अब ये जो गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट है ये आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके एक्यूमुलेट होता है। इट कॉजेज लिवर, किडनी एंड ब्रेन डैमेज। इसकी वजह से द चाइल्ड हैज हिपैटोमेगली। इन बच्चों को रीनल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है एंड दे हैव डेवलपमेंटल डिले एज वेल, दे कैन हैव सीजर्स ऑल्सो। इसके अलावा अगर ये गैलेक्टोज गैलेक्टिटॉल में कन्वर्ट होता है तो ये हमारे लेंस ऑफ द आई में जाकर के एक्यूमुलेट होता है एंड इट कॉजेज दिस ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट।
विच इज क्लासिकल फॉर गैलेक्टोसीमिया. तो गैलेक्टोज का गैलेक्टिटॉल के अंदर कन्वर्जन की वजह से यू गेट दिस ऑयल ड्रॉप कैटरैक्ट. सो दिस इज हाउ यू गेट दीज डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस. जैसे हमने बात की सीजर और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, इनको जॉन्डिस, हिपैटोमेगली और डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग एंड फेलियर टू थ्राइव, एंड वेरी इंपॉर्टेंट दे classically have sepsis with E. coli. So this is also important and classical feature for galactosemia. तो अगर किसी को गैलेक्टोसीमिया है तो हाउ डू वी डायग्नोज दिस गैलेक्टोसीमिया. जब आपको एक बच्चा मिलेगा जो सिमिलर क्लिनिकल फिनोटाइप के साथ आएगा, यू वुड डू बेनेडिक्ट टेस्ट. तो बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है, ये हमारा जितने भी रिड्यूसिंग सब्सटेंसेज होंगे उनके लिए पॉजिटिव आएगा. तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये नॉन ग्लूकोज सब्सटेंस है या ग्लूकोज है. तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप इजीली क्या करोगे, पहले आप यूरिन डिपस्टिक करोगे. ठीक है, यूरिन डिपस्टिक जो होता है वो यूरिन का ग्लूकोज को डिटेक्ट करता है. तो अगर आपके बच्चे को गैलेक्टोसीमिया है तो उसके यूरिन में यू वुड हैव गैलेक्टोज विच इज नॉन ग्लूकोज. तो ग्लूकोज नहीं है तो ये यूरिन डिपस्टिक से आपका ग्लूकोज नेगेटिव आएगा. लेकिन जब आप बेनेडिक्ट टेस्ट करोगे तो बेनेडिक्ट टेस्ट तो सभी रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस के लिए है, तो वो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा. दिस मीन्स दिस इज नॉन ग्लूकोज रिड्यूसिंग सब्सटेंस, और इससे यू कैन बी श्योर कि ये मतलब दिस इज डेफिनेटली नॉट ग्लूकोज. तो ये हो गया हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट. बेनेडिक्ट टेस्ट ऐसा दिखता है, इसके अंदर हम कलर के बेसिस पे, द कलर के बेसिस पे एक तो हमें पता चलता है कि इसमें रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, और डिफरेंट कलर के हिसाब से हमें ये भी पता चलता है व्हाट इज द लाइकली अमाउंट. सो दिस इज अ सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट जो हमारा रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस को डिटेक्ट करता है इन द यूरिन. और इसको कंफर्म करने के लिए यू कैन डू दिस गाल्ट ऐसे. इससे हम कंफर्म हो सकते हैं दैट द चाइल्ड डेफिनेटली हैज डेफिशिएंसी ऑफ गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज. तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके अंदर हमें क्या करना है, मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, बिकॉज हमें अपनी डाइट से गैलेक्टोज को पूरा हटाना है, बिकॉज यू डू नॉट हैव द एंजाइम विच मेटाबोलाइजेज दिस गैलेक्टोज. तो आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है. तो इन बच्चों में आपको ब्रेस्ट फीडिंग भी अवॉइड करनी है. ठीक है, इसकी वजह से इनको सीरियस साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ गैलेक्टोज 1-फॉस्फेट. सोय बेस्ड फॉर्मुलाज यू कैन यूज, बट डेफिनेटली मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स जिसमें लैक्टोज इज द शुगर, यू शुड नॉट यूज. सो दिस इज ऑल अबाउट गैलेक्टोसीमिया. Now let's look at the next question. A pedigree has been given to you and you have to identify which of these diseases it belong to. So this type of questions have been repeatedly asked, and it was also asked in NEET PG 2025, wherein you have to identify the inheritance pattern based on the pedigree given to you and you have to see which disease it belong to according to that. तो सबसे पहले जब भी आप पेडिग्री एनालाइज करोगे, सबसे पहले you have to see whether it's dominant or recessive. और वो कैसे पता लगेगा कि अगर आपकी जो भी अफेक्टेड चाइल्ड है उसके पेरेंट्स अफेक्टेड हैं या नहीं है. इफ दे आर नॉट अफेक्टेड दैट मीन्स दिस इज फॉर श्योर नॉट डोमिनेंट. तो ये डोमिनेंट नहीं है. ठीक है, इसका मतलब रिसेसिव हुआ. इसके अलावा फादर टू सन ट्रांसमिशन आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसके बेसिस पे यू ऑल्सो सी कि ये एक्स लिंक्ड है या नहीं है. यहाँ पर आपको फादर टू सन ट्रांसमिशन नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स दिस इज एक्स लिंक्ड. तो इससे हमें क्या पता चल गया कि दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस. तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है. एंड नाउ वी कैन इजीली सी विच डिजीज इट बिलोंग्स टू. तो अगर एकॉन्ड्रोप्लेजिया देखते हैं, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो ये आंसर नहीं होगा. प्राइडर-विली जो है हमारा मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, ये एक जिनोमिक इम्प्रिंटिंग से होता है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर. विल्सन्स डिजीज हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर. द आंसर इज विस्कोटोलरिक बिकॉज दिस इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव. तो आगे अब हम पढ़ते हैं कि हाउ टू एनालाइज द पेडिग्री so that you arrive at the correct inheritance pattern. So the first rule of analyzing the pedigree is if at least one parent of the affected child has disease, this it would be a dominant pattern of inheritance. मतलब बच्चे के साथ साथ अगर उसके पेरेंट एटलीस्ट एक पेरेंट को भी डिजीज है तो वो डोमिनेंट पैटर्न होगा. Then second rule would be if there is father to son transmission, that means this is not X linked inheritance, क्योंकि father का जो X क्रोमोसोम है वो डॉटर को मिलेगा, not to your son. इसका मतलब अगर father to son transmission आपको देखने को मिल रहा है, that means this is for sure not X linked inheritance. और अगर father to son transmission नहीं है, इसका मतलब वो X linked inheritance है. Then if all the children of affected females are affected, मतलब फीमेल से सारे के सारे siblings offsprings are affected, इसका मतलब इट वुड बी माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ फीमेल्स ट्रांसफर कर रही हैं. सो अगर आप ये 3 सिंपल रूल्स अप्लाई करेंगे किसी भी पेडिग्री चार्ट में, यू कैन इजिली कम एट द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सी विच डिजीज इट. देन यू हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मदर ब्रिंग्स इन हर चाइल्ड विद कंप्लेंट्स ऑफ सेल्फ हार्म.
You suspect there is a disease which occurs due to the deficiency of HGPRTase enzyme. What is the disease? तो यहाँ पे ये लग रहा है कि स्टेम बेस्ड है, बट दिस इज अ सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पे लास्ट लाइन में यू हैव बीन गिवन कि द पेशेंट हैज HGPRTase डेफिशिएंसी एंड व्हाट इज द डिजीज. तो इसमें सीधा सीधा वी नो दैट लीश-नीहान syndrome is the one. Leishman is the one which is caused due to HGPRTase deficiency. So let's learn more about Leishman syndrome. So Leishman syndrome एक X-linked recessive disorder होता है जो हमारे प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है. Here you have the deficiency of HGPRTase enzyme, that is hypoxanthine guanine phosphoribosyltransferase transferase enzyme. यूजुअली हमारे जितने भी एंजाइम डेफिशिएंसीज होते हैं दे आर ऑटोसोमल रिसेसिव, बट लेश-नीहान सिंड्रोम इज X-linked रिसेसिव. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ऑल्सो योर हंटर्स इज X-linked रिसेसिव. इट इज़ ऑल्सो एंजाइम डेफिशिएंसी. तो ये हमें याद रखना है. देन इसमें प्यूरिन मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होने की वजह से यू हैव इंक्रीज्ड यूरिक एसिड बिल्डअप इन द बॉडी, जिसकी वजह से यू कैन गेट गाउट, यू कैन गेट रीनल स्टोन्स एंड यू कैन हैव रीनल फेलियर ऑल्सो. तो ये बच्चे किस क्लिनिकल फीचर्स के साथ आते हैं? द क्लासिकल feature which is often mentioned in your stem of the question, that is self injury or self mutilation. This is very important. They also have dystonia, chorias and developmental delays due to this uric acid accumulation. तो अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड इज बिल्डिंग अप, द ट्रीटमेंट वुड बी टू रिड्यूस इट. तो हम यूज कर सकते हैं एल्यूपिरिनॉल विच इज और xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर, और यू कैन यूज फेबिक्सोस्टैट. ये दोनों ही हमारी बॉडी में यूरिक एसिड को कम करेंगे. अब ये हमारी बॉडी में यूरिक एसिड कम करेंगे, सो दे वुड रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ गाउट, रीनल स्टोन्स एंड रीनल फेलियर. बट जो सेल्फ म्यूटिलेशन और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं दे आर ऑफन डिफिकल्ट टू ट्रीट बिकॉज उनका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, पैथोलॉजी क्या है, दैट इज स्टिल अननोन. अब अगर आप इमेजेस देखोगे तो सेल्फ म्यूटिलेशन के आपको फीचर्स दिखेंगे अगर कोई भी बच्चा आपके पास लेश-नीहान सिंड्रोम के साथ आता है. तो यहाँ पर इन दिस इमेज यू कैन सी कि यहाँ पर पूरा थंब पे द चाइल्ड हैज टेकन आउट द नेल, और यहाँ पर पेरीओरल भी लिप पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर देयर इज एन अल्सर बिकॉज ऑफ द सेल्फ म्यूटिलेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट. Now let's move on to the next question. You have been given this karyotype and you have to identify the disease it belongs to. तो ये karyotype देख करके disease type पूछने के questions commonly हमारे नीट पीजी में आते हैं, और क्योंकि अब हमारा जो एग्जाम है फैक्ट बेस्ड से कंसेप्ट बेस्ड पे शिफ्ट हो रहा है, देयर दे कैन गिव यू दिस karyotype and they can ask the associated clinical features or they can ask you about the disease itself. तो यहाँ पे जब भी आप karyotype देखोगे यू हैव टू सी वेदर क्रोमोसोम्स का नंबर एडिक्वेट है या नहीं. यू हैव 22 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, अलॉन्ग विद दैट यू कैन हैव डबल एक्स और यू कैन हैव 1X और 1Y. तो यहाँ पर जो हमारा karyotype है इसमें 22 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम तो ठीक है, बट यू हैव जस्ट सिंगल एक्स एंड यू हैव नो Y हियर. सो दिस वुड बी total number of chromosomes would be 45 and it would be X and there is no Y or there is no another X. So this is 45XO. 45XO is your Turner syndrome. So the answer would be A, Turner syndrome. अगर आप Klinefelter syndrome की बात करते हो, here you have 47XXY. You have an extra set of X chromosome. In Patau syndrome you have trisomy of chromosome number 13 and in Down syndrome you have trisomy of chromosome number 21. So let's see कि इन सबका karyotype कैसा दिखता है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे यू हैव पटाउ सिंड्रोम हियर, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 13 का यू हैव ट्राइसोमी. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड दिस इज द 13th क्रोमोसोम एंड यू हैव ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम. सो दिस इज पटाउ सिंड्रोम. इन डाउन सिंड्रोम यू हैव ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21. तो यहाँ पे जब हम क्रोमोसोम नंबर 21 को देखेंगे, दिस इज हियर you see 3 chromosomes here, so this is trisomy 21, this is Down syndrome. अगर आप Klinefelter की बात करते हो तो you have 47 chromosomes in total. You have an extra chromosome which is X, so this is XXY, this is Klinefelter syndrome. आप इन सब सिंड्रोम से एसोसिएटेड जो मेन क्लिनिकल फीचर्स हैं विच हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग दीज, यू हैव टू बी श्योर अबाउट दीज फीचर्स बिकॉज दे कैन बी आस्क्ड आफ्टर showing you this karyotype. So let's move on to the next question. This is what is the pressure at which the pop-off valve in a self-inflating bag is released? तो ये simple fact-based question है जिसका answer is C, which is 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. दे आर आस्किंग कि जो हमारा एम्बू बैग या जो हमारा सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग होता है उसका जो पॉप ऑफ वाल्व है वो किस प्रेशर पर रिलीज होता है. सो लेट्स सी कि एक सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग दिखता कैसा है. सो दिस इज योर सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग और इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. दिस इज योर पेशेंट आउटलेट. यहाँ पे यू हैव डिफरेंट वाल्व्स. यहाँ पे यू हैव अ पॉप ऑफ वाल्व, यू हैव अ वन वे फिश माउथ वाल्व, यू हैव अ इनलेट फॉर oxygen and you have a inlet for your air, or you can attach a reservoir bag here as well, and this is your bag which will generate the tidal volume. And to the patient outlet usually you connect a mask. तो यहाँ पर हमारे एक
जो वाल्व्स हैं उनको हम अगर डिटेल में देखें, दिस इज द प्रेशर रिलीज और पॉप ऑफ वाल्व जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में बात की गई है। ये जो भी एक्सेस प्रेशर जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग वेंटिलेटिंग द चाइल्ड वो रिलीज करता है, एंड वेन एवर दिस प्रेशर इज मोर देन 40 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर दिस पॉप ऑफ वाल्व वुड बी रिलीज्ड। इसके अलावा हमारे पास जो बैक साइड ऑफ द बैग होता है इस पे यू हैव एन इनटेक वाल्व, यू हैव एन आउटलेट रिजर्वॉयर फ्लैप वाल्व, यू हैव अ इनलेट रिजर्वॉयर फ्लैप वाल्व जो इन और आउट जो हो रहा है एयर को उसको यूनिडायरेक्शनल मेंटेन करके रखता है। सो दिस इज योर सेल्फ इन्फ्लेटिंग और बैग विद रिजर्वॉयर। Let's move on to the next question. What is the initial pediatric dosing of adenosine in a child with PSVT? So whenever a child with tachycardia has absent P waves or no P waves, and along with that the QRS interval is very narrow, you diagnose PSVT in this child and you need to give adenosine to this child if the child is hemodynamically stable. तो इसमें you give adenosine which is at the dose of 0.1 mg per kg, maximum till 6 mg. This is the first dose, and if PSVT is not resolved with this, you give 0.2 mg per kg of adenosine at maximum of 12 mg per dose. So this is how you give adenosine. So the correct answer here would be 0.1 mg per kg for the first dose. How do you give this adenosine? Since adenosine has a very short half-life, you need to be very quick in administering this adenosine. So you use a three-way. At one end of this three-way, you attach the adenosine, and at the another end, you attach the NS flush. You push this adenosine soon after preparation very fast, within 5 seconds to 10 seconds, and this is followed by a NS flush. This ensures that your adenosine reaches the heart soon and acts there. So this is the dose of adenosine in PSVT. Let's move on to the last question for today. A child suffers from Pendred syndrome. You get to know that it is due to the defect in pendrin. What is pendrin? So this is a fact-based question where they're asking that what is pendrin which is affected in the Pendred syndrome. So this pendrin is a iron transporter which is chloride iodide symporter जो हमारे thyroid gland, हमारे inner ear में भी present होता है. That's why you get Pendred syndrome whenever this pendrin जो transporter है it is affected. So it's a merger of your overlap of your physiology and pediatrics. So let's see what Pendred syndrome is. So pendrin is a chloride iodide symporter which is affected in this Pendred syndrome. Pendred syndrome में you get sensory neural hearing loss because यहाँ पे हमारे जो chloride iodide symporter हैं वो affect होंगे. इसके साथ में ये chloride iodide symporter हमारे thyroid gland में भी है which is necessary for your thyroid hormone synthesis. So the child would have goiter and they would have enlarged vestibular aqueduct. So this is the Pendred syndrome where chloride iodide symporter is affected. So this is all for today. We have discussed the NEET PG Pediatrics previous year questions from 2024 in this video. We will be soon coming with a video for 2023 as well. Till then, keep learning and thank you.